Hi all, good afternoon. Sit down please, sit down please. So audible, visible? Yes? Sorry. Pen drive. So we were talking about earthquakes. Yes? Lithosphere, any doubt? We'll be talking about hydrosphere today. So we'll be entering a new zone, ocean. And I plan to make 24th of December as your last class for general geography. Lot of geography has happened. पिछले कितना 2 महीने से geography कर रहे हो? ये किताब. This is for your January month. I don't plan to be with you in January. ठीक है. So एक महीना आपके पास ये कर लेंगे बुक. Possible? ये हो जाएगा तो इसके बाद इंडिया का बुक टू बी एट क्लास 12th बुक इज ऑल्सो देयर. So Indian geography will be in the towards the end of January. Maybe towards the end 27 को मिलूंगा मैं. So तब तक 1 month I guess that we would have done our geography books. That would be the last part of geography, so there will be a lot of testing which we'll do in the end. So that's there. Sir, अभी तो Indian geography बाकी है. So that's what I said. General geography last class on 24th of December. Then after a gap of 1 month, I will be doing that with you, Indian geography. And for that, I would want ये दो books हो जाने चाहिए. One is this. This is class 11th part 2. This is physical geography of India. And then we have a similar class 12th part 2, which is human geography of India. तो दोनों बुक साथ में कर लीजिएगा. I will take all those things. So the book NCERT was written somewhere in 2004-5. So सब पुराना हो चुका है. So the latest data that will be updated in the class. हाँ जी सर, तब तक ज्योग्राफी का रिवीजन एनसीईआरटी हो जाएगा. दैट्स अ गुड थिंग. आई कैन डू अ लॉट ऑफ टेस्टिंग देन. यस. So that's my intention. Geography as a subject, for that matter, geography, history, polity, these are subjects even if you are doing closer to prelims, you get a good opportunity to revise them. वो वैसे भी आपका important area, so that's a good thing. So I hope I have made the announcement to my online students also. Kindly confirm the audio and the video. So one batch is responding. So both books are complete. Good. तो एक बार फिर से एक राउंड और कर लेंगे तो कोई दिक्कत? Yes. Somebody met me yesterday with a planner. He said मैं 4 times geography की books पढ़ने वाला हूँ. That's okay. 4 times. So the planner was only geography and some history. अब problem ये है, if you do 4 times geography, so geography तो is easy, मोक्ष मिल जाएगा. But the whole syllabus is left, no? Will it not make us panicky? यार अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है. So please get this, that this examination is also a test of nerves. So please do not just focus on one subject कि इसी में मजा आ रहा है और उसे ही चरस बना लिया. Don't make it. Get that? So GS almost complete हो गया है except ethics. Optional 20% हुआ है. कब तक बंद करें, कुछ गाइड कर दीजिए. So ये दिसंबर में ethics करो, ठीक है. Optional, if your optional is geography, history, political science, you can take it till March, no problem. But ethics December में खत्म कर दो. So following the planner and reading NCERT class 11 twice and started 3rd time. अरे बहुत अच्छी बात है, ये तो 2 बार पढ़ चुका है यार. Now everything is much more clear. Clear क्या, मास्टर बन सकते हो अब तुम. So that's good. Yes. So there is a student. He has already completed his class 11th NCERT twice, and he's saying starting the 3rd time. So I would say yes, don't start the 3rd time. Go for class 12th NCERT. Get that? Class 12th. And he says now everything is much more clear. Guaranteed है कि बहुत clear हो जाएगा. And this magic will happen. People who are following this, ये आपका history में भी हो जाएगा. जो भी subject आप ले रहे हैं, you will really find feet in that subject. मजा आएगा उसमें. आपका मन करेगा यार अब एग्जाम देने का मन है. So that's what we are talking about.
yes, do keep on looking at some of the practice questions. अब PYQ तो हो गए, उसके अलावा practice questions भी होते, do them. सर माय ऑप्शन इज जुअलॉजी, तो अभी कर सकते हो यार, जुअलॉजी दिसंबर तक करो. और अगर कुछ ऐसा, बिकॉज यू आर सेइंग ओनली 20% ऑप्शनल इज डन एंड योर ऑप्शनल इज जुअलॉजी, सो आई प्रिज्यूम आप 25 की तैयारी नहीं कर रहे हो, क्योंकि 25 में देना है एंड जुअलॉजी इज योर ऑप्शनल. आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि आपका 70% जुअलॉजी भी खत्म होना चाहिए था. So why Iceland is called Iceland when everything there is green? Why is Greenland called Greenland when there is only ice? इतनी पहेली है ना. सो अच्छा ऑब्जर्व किया. आई एम ग्लैड दैट यू आर रीडिंग दीज थिंग्स ऑल्सो. इससे बच्चों का मन बहलाने के लिए वो करेंगे. सो आई एम एब्सोल्युटली ओके अभय विद योर क्वेश्चन. आई एम जस्ट सेइंग, you want to explore it on the internet. सर आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. सर वर्ल्ड ज्योग्राफी का एटलस से सिर्फ करें या फिर एम्प्टी मैप लेकर उस पर भी मार्क करना होगा? अभी क्या उसमें है बेटा, रिपीट द क्लासेस, अभी उसको छोड़ देते हैं. कैन वी कम बैक टू अ टॉपिक? ठीक है. सो इट वाज जस्ट एन अनाउंसमेंट दैट पीपल हु हैव रियली टेकन दोस थिंग्स. मेरे साथ आपके पास आई वाज विद यू फॉर ऑलमोस्ट 2 months. यस. एंड एज समबडी सेड, सर आप तो गाइडेंस दे रहे हो, तो 2 महीने से मैं कह रहा हूँ, कॉन्शियसली कह रहा हूँ. November, December, I've consciously told you, get into the books. People who got into that, and it's like, parents want to rear up their children 12th तक, graduation तक, and then they say, ठीक है बाद में संभाल लेगा. So my intention was people experiment with me, and once I am sure you can also read from others जिन्होंने काम किया, they are finding their feet, they are becoming confident. Similar things can be done for other subjects also. Just identify the sources that will cover the syllabus, plan it that this is the date up to which I will finish it, and the same thing will happen जो आपका geography में हो रहा है. That's my promise, it will happen. But वो एक plan करके चलना होगा. That's there. People who are in 2026, I have always told you कि 25 को target करके पढ़ाई कर लो. Yesterday I met a girl, she said, sir I was planning to give 2026. आपके साथ 25 का target planning किया, अब लग रहा है तो 25 में दे देती हूँ. I'm saying you yourself will gain that confidence. ये November, December is a good time. November, December में तो हम पास कर लेते हैं. हम तो कह रहे हैं 90 days का जब हम प्रोग्राम करते थे, प्रोग्राम क्या, हम तो 45 days का भी कर देते थे. So that was possible. आपके पास बहुत टाइम है. Yes. Sir, I am experimenting with you. हाँ कुलदीप, काफी कर रहे हो, मुझे पता चलता है जो तुम एक्सपेरिमेंट करते हो मेरे साथ. मैं बीकर टाइप फील करता हूँ. कभी कभी तुम मेरा टेस्ट ट्यूब बना देते हो. दैट्स ओके. सो दैट्स ऑल फन यार. दैट्स व्हाट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू डू. सो दैट्स देयर. हाँ जी. तो अर्थक्वेक ले आए थे हम लोग. अर्थक्वेक के कॉजेज, दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. सो प्लीज लेट्स लुक एट द हेडिंग वुड बी लोकेशंस और अर्थक्वेक बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सर कॉमर्स मेरा ऑप्शनल है बेटा, जैन के बाद कुछ नहीं. कॉमर्स को बाय बाय कर दो थोड़ी देर के लिए. सर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है सर, फरवरी एंड तक टारगेट है. तो पीपल वर यूजिंग जनवरी एंड फरवरी फॉर ऑप्शनल, आई वुड से कि प्लान ऐसा करो कि ऑप्शनल को 4 घंटे से ज्यादा नहीं देने. गेट दैट? इफ योर ऑप्शनल इज नॉट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस. लैंडफॉर्म ड्यू टू ग्राउंड वाटर, कार्स, टोपोग्राफी, एनसीईआरटी थोड़ा बता दीजिए अपनी लैंग्वेज में. सो प्रिंस यादव हैज अ क्वेश्चन. आई टोल्ड यू दैट इसमें क्लास 11th एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर हर एक का बुक में अलग अलग है वो चैप्टर. सम पीपल वर कंफ्यूज्ड. लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन. सो प्रिंस यादव इज रिक्वेस्टिंग, सर आई हैव रेड दैट चैप्टर, समझ भी आ रहा बट वो टफ है. यस, एंड मेमोराइजिंग. सो ही वांट्स मी टू एक्सप्लेन दैट इन माय वर्ड्स. So let's keep that for Tuesday, Prince. I will do that. So आप सबको सारे landforms एक बार just a broad overview. So it might be that you might find those names very strange. Your teacher can identify what is important, what is not. So I understand your query, Prince. I will do that on Tuesday. पहले ये खत्म कर दे. Oceans खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा. Then we will do that. So last class we will keep on landform, the chapter which I have reserved for it. So in my NCERT it is chapter number 6, landform and their evolution. In some other NCERT it might be other chapter also. हाँ जी.
Asif Rashid, are your lectures enough for UPSC mains or prelims, or we have to refer to some book? Asif Rashid, this tells me आपने ना पेपर देखा है ना कुछ देखा है. वेलकम टू द क्लास. क्लासेस पूरा करें, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे. ये सुनो, द टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन टेस्टिंग इट. करने के बाद जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपके ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस पीछे के भी आगे के भी, एंड माय क्लासेस आर नॉट जस्ट some dictations, they are some capacity building in reading, in understanding, in writing, and आप वो कर पाओगे. ठीक है. Sir, I am able to solve PYQs of recent year but find difficult to solve PYQ of 21-22. ये तो recent ही हुए ना. Okay. Because of contemporary issue questions are asked. So let's focus on this. बाद में करेंगे इसको. So where are earthquakes? So earthquakes अब तो इतना पढ़ लिया हमने, प्लेट टेक्टोनिक्स ही तो एक्सप्लेन करता है ना. So earthquake कहाँ हो सकता है? प्लेट बाउंड्री. Which boundary? Which out of the three? All three. So एक एड्रेस तो हमेशा ही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होगा. What is happening over there? Convergence. Convergence is happening there. Get that? एक होगा मिड अटलांटिक रिजेस, डाइवर्जेंस. एक होगा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, एल्प्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, एंड देन इंडिया, हिमालयस. ट्रू, दैट्स आल्सो देयर. एंड उसके अलावा ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, रिमेंबर सेन एंड्रियास. तो यहां पर सेन एंड्रियास है, ये आप अपने आप देखेंगे कि दे विल बी लार्जर इन नंबर. So this is the San Andreas region. True. Can we see this? This line is what? Sir, ये तो वो हो गया. अच्छा, why पूछा क्या है? Why thousands of island in Indonesia and Philippines? ये पूछा है. They've asked us this question. Why thousands of islands in India and Philippines? Can they ask the same question here? Why thousands of islands in Caribbean? Yes, same answer. Same answer. Which plate? The Caribbean plate and the Atlantic plate are converging. इधर क्या था? Indian plate, और यहां पर ये छोटी प्लेट बर्मा माइक्रो प्लेट इज कन्वर्जिंग. इधर फिलीपाइंस प्लेट भी था एक. तो दोस प्लेट्स आर कन्वर्जिंग विद ईच अदर. रुचि सिंह इज आस्किंग इंडियन ज्योग्राफी एंड ह्यूमन इकोनॉमी. हाँ, क्लास 12th पार्ट 2 इज इंडियन ज्योग्राफी एंड ह्यूमन इकोनॉमी. बिल्कुल ठीक है रुचि, वही वाला करना है. So can we write it down? Earthquakes do not occur randomly. Earthquakes do not occur randomly. Rather they are caused by definite tectovolcanic processes. Caused by tectovolcanic processes. Get that? 95% of world's sorry, मैंने volcano लिखा है तो उसको earthquake कर देना. Wherever I was saying volcano, वैसे वो उस पर भी apply होगा. 95% of world's earthquakes. 95% of world's earthquakes are reported along plate margins. Are reported along plate margins. In bracket, all three types. Bracket close, all three types. And 5% of earthquakes are reported as intra-plate seismic activity. As intra-plate seismic activity. The principal seismic belts, the principal
seismic belts, the principal seismic belts of the world are as follows. Number 1, circum-Pacific ring of fire. Circum-Pacific ring of fire. So on the perimeter of Pacific Ocean, in bracket you can write down convergent margin. Next, mid-continent mountain belt, mid-continent Eurasian mountain belt, mid-continent Eurasian mountain belt, in bracket from Alps to Himalayas, that's the mid-continent belt from Alps to Himalayas, comma, due to plate convergence. Once again, plate convergence. Okay. Third one, the mid-oceanic ridges, and continental mid-oceanic ridges and continental rift zones, mid-oceanic ridges and continental rift zones, in bracket which boundary? Divergent boundary. And next, or the last one, कितने हो गए? 3 हो गए. Fourth one is the transform fault regions of the world. Transform fault regions of the world. In bracket कौन से ट्रांसफॉर्म फॉल्ट एग्जाम्पल दिए थे? San Andreas and Anatolian Plateau. San Andreas and Anatolian Plateau. Next paragraph. Apart from the above, plate margin related earthquakes, comma, there is a possibility of seismic activities in lithospheric rocks having crustal weakness. Such weak plates may crack in response to loading and unloading. Now you know what is loading, unloading of a plate. Loading and unloading, comma, isostatic readjustment. We have already talked about this also.
as well as as well as as well as in response to anthropogenic acts anthropogenic acts of dam construction, comma mining, dam construction, comma mining, comma infrastructure development activities, as well as infrastructural development activities, as well as nuclear testing, deep inside lithospheric rocks. Nuclear testing deep inside lithospheric rocks. Such earthquakes are few in number. Such earthquakes are few in or less in number. Such earthquakes are less in number and are referred to as intraplate earthquakes. Are referred to as intraplate earthquakes. So everyone, simple stuff. Same thing for volcano. Margin पे होगा. If it is not happening on margin, exception will be intraplate. And intraplate was what? Hotspot. Straight from the mantle plume it was coming and that was created. Similarly, for the slabs in earthquake, when the plate or the slabs collide with each other on the margin, all the drama will happen. Yes, sometimes we have done a lot of activities. Say for example, just to give you an example, I have this Three Gorges Dam. Three Gorges Dam is in China, the largest dam. Their river is Yangtze. So when this dam was being built, so when you build a dam, will you stop water behind that or not? So the river is getting blocked. Now there are massive mountains and you block it. When you block it, the water will be collected. Remember, when water will be collected, water has weight. Will it cause plate loading or not? So plate loading will cause the crust lithosphere to bend, asthenosphere to shift. Now that bending, remember lithosphere are brittle rocks. They are not flexible. So they can crack. So many mountains developed cracks. उधर आसपास जो सड़कें थी, जो घर थे, they developed cracks and constantly that stress is building up. So can the world say that this is one area where tectonic hazard is very high? कब आएगा earthquake पता नहीं. Yes or no? कब तक the rocks will be able to take it, because every rock will have its mineral composition, will have its elastic strength, will be loading, and one day what will happen? Elastic rebound theory. अच्छा, elastic rebound लिख लो, एक लाइन और इधर डालो. After this, yes, the explanation to earthquakes, or the process of earthquake was given by H.F. Reed in his elastic rebound theory. As per elastic rebound theory, as per this theory, the lithospheric rocks or
plates, lithospheric rocks or plates, in their mutual interaction, lithospheric rocks or plates in their mutual interaction end up getting stressed and strained. Getting stressed and strained. तो लोड हो गया, अनलोड हुआ तो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन आएगा. Yes or no? So the plate is able to, the rocks or the plate, further write down, the rocks or the plates are able to withstand a certain amount of stress and strain. एक पॉइंट तक you can bend my hand backward up to a point. It can withstand and it will start paining. Yes or no? After that, there are two options. Either my wrist will fracture or this hand will come back. Yes, please write down. However, once the elastic limit of the rock, once the elastic limit of the deforming rock, once the elastic limit of the deforming rock is crossed, एक बार ये लिमिट क्रॉस हो गई तब क्या होगा? Once the elastic limit is crossed, the rocks will readjust by releasing the locked up stress and strain. By releasing the locked up stress and strain. This violent readjustment is called elastic rebound. This violent readjustment is called elastic rebound, which releases the energy that causes earthquake. Everyone with me on this? So since childhood we've been playing with rubber bands, yes? So those rubber bands, normally they are okay, but once you stretch them, now you know they have got some energy. Yes or no? But if you overstretch them, will the rubber band break also? It will have its limit. Yes? So you are thinking it's safe, मैं छोड़ूंगा नहीं, but खींच रहा है, फिर भी खींच रहा है. मत छोड़, वो खुद टूटेगा. Yes? वैसे तो हाथ पे लगेगा, ज्यादा किस्मत खराब है तो जहां बहादुरी दिखा रहे वहां लगेगा. Yes or no? So that's what is happening with rocks. Rocks are not like rubber bands. Remember, they are rigid, brittle, and solid, but they can little bit change. They can have. So that much is allowed. But उससे ज़्यादा हुआ, एक point के ज़्यादा क्या होगा? They will break, and that's what he is calling is this thing happening. It is because of this theory. Indian plate and Eurasian plate collided with each other. First OO happened, then OC, and now CC. CC में दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो स्ट्रेसेस बढ़ते जा रहे कि नहीं? Are the stresses constantly increasing? So whatever is in between, those mountains are also rising. So Himalayas are also still rising. Because that compression is still happening. But the plates, the things which are not rising, the rocks, are they getting strained or not? So strain होंगे तो उनमें बहुत सारा strain है. So when Nepal earthquake came, much before Nepal earthquake, the geologist had said that the plate is overstrained. Earthquake can come anytime. When will it come? We don't know, but it will come.
द प्लेट हैज टू रीएडजस्ट. मतलब आप मेट्रो में बहुत देर से उसी एक अंगूठे पे खड़े हुए हो. यस, अब हालत खराब हो गई है, सब कुछ ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, मरने की जगह दो चार को मार के मरो. ट्रू और नॉट? So that's where you shake up everything and you would want to shift your leg. So the mountains will release it. When they will release, we don't know. So Nepal earthquake came, and because you were not reading earthquake and all those things, we were to following it, we were to training our students into that. So the report said that we expected a far stronger earthquake. ये तो हल्का आया है. The kind of stress that was locked up in the plate, we expected a far stronger earthquake. Now, first of all, some energy has been released. Second is the stress which was very high around Nepal. Now the maximum stress zone is Afghanistan. So the next earthquake, whenever it comes, will be Afghanistan. Then only the plates will relax a bit. So now when will it come? That's the big question. So they just said Afghanistan, within a month, Afghanistan experienced big tremors. ठीक है. और सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, उसके बाद तो अभी 2022 में हमारा टर्की में आया था. सेम लाइन कंटिन्यूइंग, रिमेंबर, यूरेशियन बेल्ट. सो उस पूरे बेल्ट में स्ट्रेस है, कभी इधर से रिलीज, कभी इधर से, कभी इधर से. एंड एज लॉन्ग एज द प्लेट्स कंटिन्यू टू पुश ईच अदर, they are doing that. सर ये पुश क्यों कर रहा है? Why are they pushing? Sir, is there a reason that epicenter of earthquake are mostly on plate margins? ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा. Did we say that epicenter of earthquakes are on plate margins? We did not say that, but फिर भी Vivek, the question may be wrong. I'll explain something about that. Yeah, why are they still pushing each other? क्यों पुश कर रहे? इंडिया और यूरेशियन प्लेट आपस में भाई भाई नहीं हो सकते? हो गया. As long as there is a driving force. Driving force is somewhere in the mantle. The magma must be there. अगर वो बंद हो गया तो रुक जाएगा. सर वो बंद कैसे होगा? ना मैंने शुरू किया, ना मुझे पता. जियोलॉजिकल थिंग्स, एज आई सेड ना सर, क्या ये यहीं पर क्यों होते हॉटस्पॉट? अब है तो भाई है, दैट्स इट. यू नेवर लाइक यू वर बोर्न एंड यू सेड कहाँ? इंडिया? ना ना ना, मैं तो अमेरिका सोच रहा था, वापस भेजो. कैसे भेज देंगे? Yes or no? So that's what we are talking about. Now, so there is this plate. ये विवेक का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं. ये एक प्लेट है, ठीक है. ये एक दूसरी प्लेट है. True. These two plates are there. Now, when they collide, they will collide here. Suppose this plate subducts, and whatever will happen. सो जो एनर्जी रिलीज होगी वो तो यहीं कहीं पर होगी कि नहीं होगी? सो अर्थक्वेक कहां पर आएगा? प्लेट मार्जिन पे आएगा ना. सो हिज क्वेश्चन इज, सर इज दिस द रीजन दैट एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक आर मोस्टली ऑन प्लेट मार्जिन? अभी अ वेरी ट्रेजिक इवेंट हैपेंड इन मुंबई वेयर अ पैसेंजर फेरी was hit by a naval boat, speed boat, which somehow the Navy says that the engine control was lost in that. So आप बताइए सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां होगा? जहां बोट को उसका हेड जाके टकराएगा. Yes or no? That will be the epicenter. But impact तो पूरा होगा. That's very sad, women and children died in that. और लोग जाते हैं. That's a tourist attraction. People go over there, and most of those, as I was just talking about that Brahmaputra river, no, बोट ज्यादा लोड होती है, and all that. So I was just talking to someone, he was talking about my shipping days. So he says, sir, can you take your family on the ship? I said, yes, I can take my family. So my family used to go with me. So he says, anyone can take family? I said, no, only officers can take family. So he says, whenever you join, तभी से ले जा सकते हो. मैंने कहा नहीं, you need to become a senior officer, then only you will take. And then I told him there is also a very big limitation. What is the capacity of your ship? Ship's capacity is decided by its lifeboats. Lifeboat capacity. जैसे टाइटैनिक था, टाइटैनिक डूबा, तो जितने भी लोग हैं उनके लिए sufficient lifeboat होनी चाहिए. So suppose my lifeboat capacity of the ship is 23 or 25 persons, and already there are 25 people on that. So now one officer is being replaced. I will go as an officer over there. I want to take my family along.
बट लाइफ बोट कैपेसिटी एक्स्ट्रा तो है नहीं, तो एक जान के साथ नहीं खेला जाएगा. बट जब हम यहाँ पे जाते अपनी बोट्स में, अरे पूरा फैमिली है, छोटा बच्चा है, इसका क्या लगता है, चलो चलो. अरे लाइफ जैकेट्स, कितने लाइफ जैकेट्स हैं. एंड पीपल थिंक यार ये ऑरेंज कलर का लाइफ जैकेट, इसमें गर्मी लगता है, क्यों पहनना है, इसी दिन के लिए पहनना है. दैट इज ओनली फॉर दैट. Some accident may happen, so that's what we are talking about. So this is where the safety norms are being flouted. Unfortunately in India, as I told you, be it river transport or be it the coastal transport, उसमें बहुत से लोग involved नहीं है, and those safety standards are not in place. Safety standards are not in place. Otherwise this industry is the safest industry. उसमें सारे नॉर्म्स हैं, एवरीथिंग, पीपल आर ट्रेन्ड इनटू दैट. अभी क्या है, आप यहाँ भी देखेंगे, बी इट प्रयागराज, आगे चले जाओ बिहार में, पटना में, जो आपको नदी पार करवाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, उसको बस वो डीजल इंजन है, उसने खींचा, चलो जी पकड़ के कर रहे हैं. आपको भी पता है, हाँ नदी दिख रही है, गंगा मैया, बस गंगा मैया बुला लेंगे जिस दिन. यस नो. We recently heard, last month, 2 months ago, someone visited Ganga, he slipped, ghat pe he slipped, and he was drowning. People said, bachalo, those boat walas. And the boat wala said, pehle paisa. Online transfer करवाया, तब तक गंगा मैया ले गई थी. It's not the time, bhai, that's the time to save the person. So that's something very sad. So आई थिंक हम लोगों ने बात की, मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में आई टॉक्ट अबाउट दैट, पूरा का पूरा क्रूज जो है हमारा गंगा वाला. बट सेफ्टी नॉर्म्स आर बिग प्रॉब्लम, सेफ्टी नॉर्म्स आर बिग प्रॉब्लम. एंड आई थिंक इफ दैट सेफ्टी नॉर्म्स कम इन, दैट्स अ वेरी बिग जॉब अपॉर्चुनिटी. कितने अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बट इट्स अ लिटिल सैड दैट दिस इंसिडेंट हैपेंड, एंड दैट टू हैपेंड विद नेवी. ट्रेन लोग, उनको बोट नहीं संभल रही यार. और आई कैन अंडरस्टैंड अगर मैकेनिकल फेलियर हो गया तो. अब इंजन ऑन है और डायरेक्शन आपके पास है नहीं, इट्स लाइक योर कार गोइंग ब्रेक फेल. तो कार में क्या है आपके पास, कम से कम स्टीयरिंग तो है, वो कह रहा है हैंड ब्रेक, अरे सारे फेल हो गए, हैंड ब्रेक फेल. कार में कम से कम स्टीयरिंग तो है. तो आप लोग तो इधर लोग हैं, इधर पेड़ है, किसको मारूं, पेड़ को मारूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा. दैट्स इट. यस और नो. इधर क्या था, द शिप लॉस्ट इट्स प्रोपल्शन. तो चल ही रहा है, इंजन चल रहा है, बट आपका रडर जो है, अभी तो इंक्वायरी में आएगा कि आप बोट को मोड़ क्यों नहीं पाए. वो बोट ऐसे जा रही है, वो भी देख रहे हैं, मैं मरने वाला हूं, ये घूम कर आएगा, मिसाइल टाइप जा रहा है यार. दिस इज अ वेरी, मैं कह रहा हूं, व्हाट आर दीज टेरर ग्रुप्स डूइंग. ये जो हमारे इधर है रेड सी में शिप जा रहा होता है, रेड शिप जाता है, हाउती वाले के पास इतना कुछ वेपन नहीं कि वो शिप पे मार सके. कहता एक काम कर, बोट में लोड कर माल, सारा दिवाली का माल इसमें है, सीधा जाके बोट दे मारेगा. So that's a terror way of doing this. This was a terrible incident that happened. It came like a missile की तरह से बोट आ रही है. So that's a sad thing. Let's see what comes out in that, and it's a tragic thing. चले आगे. सो अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं, हाउ डू वी मेजर. सो प्लीज राइट डाउन मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक. मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक कैसे मेजर करते हैं. सो द टू वर्ड्स हियर आर इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड. ठीक है. सो प्लीज राइट डाउन. The measurement of earthquake is done in terms of two variables. One is magnitude of earthquake. Yes. Other is intensity of earthquake. Magnitude is measured by
Richter scale. So Mr. Richter had developed this scale. Scale is 1 to 10 कर दे या 0 to 10 करना है, जो कर लो. 10 is the upper limit. क्या लिखा है एनसीईआरटी में? 0 to 10 है. चलो 0 कर लेते हैं, 0 भी मानना चाहिए. अगर 0 है तो फिर अर्थक्वेक ही नहीं है. ठीक है, कह रहा है 0 तो मान लिया. एंड इंटेंसिटी वाला किसका होता है? इटालियन जेंटलमैन गिउसेppe मर्काली. मर्काली स्केल. ये क्या है? रोमन न्यूमरल्स में 1 to 12. ये 1 से 12 तक में होता है. और वो यस, दिस इज अ क्वांटिटेटिव स्केल. क्वांटिटेटिव लॉगरिथमिक scale. This is a qualitative visual scale. तो दो तरह के स्केल्स हैं. वी आर जस्ट लुकिंग एट हाउ डू वी मेजर देम. दैट. सो व्हाट डू यू नो अबाउट दीज टू स्केल्स? क्या मेजर करते हैं? अंतर क्या है इन दोनों में? What is magnitude of an earthquake? Quantitative means mathematically. Yes, mathematically measures the amount of energy released. Energy released. ठीक है. So a Richter 7 has more energy compared to a Richter 6. इसमें ज्यादा एनर्जी निकली. Yes, which one is more dangerous, 6 or 7? एनर्जी तो रिलीज हुई है. डेंजरस क्या होता है? जो नुकसान करेगा. Yes, so imagine 8 came on Antarctica and 7 came in India, Delhi. Which one is dangerous? So Richter just tells you the energy. डैमेज नहीं बताता है वो. डैमेज किस पे डिपेंड करेगा? वो कुछ और चीज है. डैमेज पावर कौन मेजर करेगा? वो ये मेजर करेगा कितना नुकसान हुआ. ठीक है. अमाउंट ऑफ वाइब्रेशंस एंड रिजल्टेंट डैमेज. डू वी गेट दैट? सो एक होता है इंटेंसिटी और एक होता है मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज. नो डाउट अबाउट दैट. जिसमें ज्यादा एनर्जी वो ज्यादा डेंजरस है. आई एम सेइंग इट मे नॉट कॉज डिस्ट्रक्शन बिकॉज अर्थक्वेक्स डू नॉट किल पीपल, बिल्डिंग्स किल पीपल. सो कहां पर आया? दैट विल बी देयर. सहारा में ट्रेमर्स आ रहे हैं, लोग ही नहीं उधर, कोई दिक्कत नहीं. यू आर इन द ओशन, ओशन बॉटम में अर्थक्वेक आया, आप वैसे ही सी में आपकी बोट हिल रही थी, क्या दिक्कत है? और हिल रही है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट इफ इट जनरेट्स अ सुनामी देन दैट्स अ प्रॉब्लम. सो अर्थक्वेक पर से इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी. जिसमें ज्यादा एनर्जी लॉक्ड थी वो ज्यादा निकालेगा. दैट्स योर हायर ऑन दिस. एंड व्हाट डू आई मीन बाय लॉगरिथमिक स्केल? Every unit is 10 times stronger. तो log scale होता है ना, to the base 10. So 1 and 2 does not mean that the second Richter 2 is double of 1. No, it is 10 times of 1. ठीक है. So 1 से 2 गए तो 10 times, 2 से 3 गए तो फिर उसका 2 का 10 times, 3 से 4 गए तो 3 का 10 times. So that's what we are looking at. So that's what the energy is. ये एनर्जी बताता है और ये क्या बताता है? डिस्ट्रक्शन. इसमें कोई 10 times कुछ नहीं है. विजुअल स्केल है. व्हाट इज विजुअल स्केल? अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आके चला गया. अब आप वहां पे पहुंचे, आपने देखा क्या यहां पे लोग रहते थे? बिल्डिंग तो है नहीं कोई, सब फ्लैट हो गया, एब्सोल्युटली फ्लैट. 12 means complete destruction means 12. Get that?
देन यू वेंट देयर, अर्थक्वेक आया, कुछ दिख तो रहा नहीं है, द बिल्डिंग्स एंड हाउसेज ऑल आर इंटैक्ट, तो वो क्या हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया. सो आपको जाना एक विजुअल स्केल है. द असेसर विल गो एंड विजुअली लुक एट द सिटी. हेलीकॉप्टर से देख लिया, जैसे भी देख लिया, ही गेट्स अ एरियल व्यू ऑफ द सिटी एंड ही सेज 50% ऑफ द सिटी तो गई, तो इसका मतलब रिक्टर सॉरी मरकाली 6 हो जाएगा. डू वी गेट दैट? अब कैन इट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? क्वालिटेटिव स्केल है ना, मुझे तो ज्यादा लग रही है यार, मुझे तो 40% गया लग रहा है, नहीं नहीं 60 है यार. तो दैट्स अ क्वालिटेटिव वन. यहां पे क्या है, एग्जैक्ट मेजर है, कितने किलो टन निकला है. सो दैट्स द एनर्जी, दैट्स द डिफरेंस. इट्स अ मैथमेटिकल स्केल एंड दिस इज अ विजुअल स्केल. डू वी गेट दैट? दो स्केल समझ में आ गए सबको? सर एज वी गिव रेटिंग्स, हाँ आप गए, आपने पिज्जा खाया, ठीक है, आपको पसंद आया लेकिन उसको पसंद नहीं आया, तो आपको रेटिंग खराब करनी पड़ती है. आप देना चाहते थे 7/10, शी सेड ये कोई पिज्जा है, 6/10, सो वी चेंज द रेटिंग. सर ये हो गया. सो इसको हम थोड़ा सा वर्ल्ड के वोल्केनोस के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं. सो ये स्केल है 0 to 10, everyone, this is the magnitude scale. So x axis is magnitude. So earthquake, पहले देखते हिरोशिमा bomb. Remember Hiroshima was bombed in 1945. That was a scale of around 5.5. हिरोशिमा का बॉम्ब में जो एनर्जी निकली थी वो 5.5 की होती है. एनर्जी इक्विवेलेंट बता रहा हूं, एनर्जी इक्विवेलेंट, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. एक वेरी फेमस दैट हैज हैपेंड इज इंडोनेशिया में करकटाओ. करकटाओ व्हेन इट इरप्टेड इन 1883, उसकी आवाज एशिया के कई देशों में भी सुनाई दी, इतना धमाका था उसका. सो इमेजिन ये कितना रहा होगा, ये 8+ था. व्हाट वाज दिस, 8+. अभी जो टर्की में आए थे देवर ऑफ द मैग्नीट्यूड 7, देवर ऑफ द मैग्नीट्यूड 7. सबसे ज्यादा कहां आया, चिली में 9.5 इन 1960. अरे सब तबाह हो गया होगा. वेल चिली इज व्हाट, माउंटेन्स. ये सुनो, सेंटियागो में आया तब उड़ाएगा. ट्रू और नॉट? एंड आई रियली वांट टू टेल यू दैट ये सारे एरियाज क्या हैं, ये वही एरियाज हैं जहां पे प्लेट बाउंड्रीज आर देयर, प्लेट बाउंड्रीज आर देयर. एंड कैन वी हैव ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स आल्सो? यस. सो किम जोंग यूंग टेस्टिंग करते रहते उधर. So NASA के satellites see that there were tremors and they categorize it as human induced seismicity. So that is a human induced seismicity. ये एकदम mathematical होता है. It is magnitude is the amount of energy released. Magnitude is measured in Richter scale. It's a logarithmic scale. Two of the strongest earthquake in Turkey that happened 7.8, 7.7 last year, February 2027. Also February 2023. So last year, yeah, I think. Intensity is the amount of energy. Magnitude. Magnitude is measured by Mercalli. क्या लिख रहा है यार? Magnitude is this, intensity. बताओ, मैं ही सही से पीपीटी भी नहीं बना रहा हूं. Yes, are we done? So अब आपको पता चल गया कि भाई magnitude. So which one is more scientific? Magnitude is more scientific, yes, but I want to tell you, ये बनाते कैसे, ये मैं आपको अभी, you will be very this thing. अभी आपको इंटेंसिटी स्केल बनाना आ जाएगा. So this is what फोकस. फोकस में अर्थक्वेक आया और यहां पर उसकी एनर्जी रिलीज हो रही. फोकस के ऊपर ये पॉइंट है, ये क्या है, एपी सेंटर. एपी सेंटर. फोकस पे जो भी आया ये फिक्स है, रिक्टर 6.7. दिस विल रिमेन फिक्स. ये एनर्जी है ना, एनर्जी रिलीज होगी. जियोलॉजिस्ट हैव अ वे टू फाइंड आउट हाउ मच एनर्जी वाज रिलीज्ड. तो कितना एनर्जी है, 6.7. गेट दैट? अब देखते हैं इसका इंटेंसिटी कैसे होगा. सो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर होगी, यहां पर होगा. इफ द बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग इज हियर, सब तबाह हो जाएंगे. ये 12 है.
Do we get that? As I go away from it, will the tremors, the effect will be a little less. So Nepal earthquake happened, people in Patna felt it more than people in Delhi. So can I say एक सर्कल ये भी होगा, इन लोगों को ज्यादा लग रहा होगा कम, ज्यादा क्यों लगेगा, दूर जा रहा है यार, ये तो एपिसेंटर से दूर है ना, मोर और लेस 11, ये 10, 9. Do we get that? इनको कहा जाता है होमोसीजमल लाइंस. जस्ट लाइक वी हैव आइसोथर्म्स, आइसोबार्स, सो वाइब्रेशंस की भी लाइंस होती है, होमोसीजमल लाइंस. सो एवरी अर्थक्वेक विल हैव इट्स विजुअल लाइंस. और ये कैसे दिखाई देगा, 12 वाले सब फ्लैट हो चुके होंगे. सो नेपाल में सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल में हुआ, फिर हम भाग आते नेपाल बॉर्डर तक आ गए, फिर ये बिहार में फील हो रहा है, एंड देन यू नो लाइक दिस इज आफ्टर बिहार ईस्टर्न यूपी, और ये दिल्ली तक आते आते ये तो 5 ही फील हो रहा था, यहां भाई कुछ हिला, बट दैट्स ऑल, दैट्स वी आर लुकिंग. सो व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड, एक बार आ गया तो आ गया, गेट दैट, but its effect will be different. So imagine there is a pond and you take a big brick and throw in the pond. जहां पे brick लगेगी, that's the maximum impact. Yes or no? Suppose a happy fish was swimming over there, उसका तो राम नाम सत्य हो गया. मछली पे तो पत्थर लग गया, मछली गई. Yes or no? लेकिन मछली की आत्मा रिपल्स बन के सब जगह जाएगी कि नहीं? So maximum energy is where the brick struck the surface. उसके अलावा पॉन्ड पे छोटी छोटी रिपल्स आ जाएंगी. Those are the same circles जिनसे इंटेंसिटी बनती है. Is everyone clear? आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट समझ में आने के लिए कि मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में अंतर क्या है. मैग्नीट्यूड इज द रियल मेजर ऑफ एनर्जी, इंटेंसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन योर डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर एंड विजुअली हाउ मच डैमेज हैज हैपेंड. मरकाली सेड दैट लेट अस डू दिस. और इसको किस लिए करते हैं, कंपेयर करने के लिए. आपको डिजास्टर मैनेजमेंट करना है, ठीक है, तो आप बोल रहे हैं यार यहां पर 12 हो गया है, यहां पर हुआ है, तो अकॉर्डिंगली यू आर एबल टू टेल द पीपल दैट व्हाट इज द स्टेट ऑफ थिंग्स. इज एवरीवन ओके? अब ये जो है फोकस पे कब एनर्जी रिलीज करेगी ये बताओ. व्हेन विल द अर्थक्वेक कम? I don't know how many of you had trees, fruit trees at your home. I used to have a lot of trees at my home. So guava trees, वो guava पक चुका है. It is all ready. गिर क्यों नहीं रहा है? I am waiting for it to fall. सर पेड़ हिला के देख लेते, हिला के देखा, अभी वो स्टेज नहीं आया कि हिलाने से गिरेगा. हाथ जा नहीं रहा है, कब गिरेगा? जब तक गिरता उससे पहले. अब पैरेट के मैंने खा के चला गया, पैरेट के पास एयर मोड था, मेरे पास था नहीं. है ना, डज इट हैपन? पीपल हु हैव हैड ट्रीज, पैरेट खा गया, मंकी खा गया, कुछ भी खा गया. पॉसिबल और नॉट? यस. लोगों ने गुलेल से निशाना लगा लगा के गिरा दिया, तुम्हारा तो गया है. यस सुनो. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, ये स्ट्रेस बन रहा है. कब इलास्टिक रिबाउंड विल हैपन, आई कैन नॉट से दैट. So earthquake prediction in short term, when will it happen, is almost impossible. In long term, I told you, were they able to tell us? See, Indian plate and Eurasian plate are pushing against each other, तो stress तो build हो रहे. My students, when they join master stroke, I tell them, आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है. इट्स सच अ हाई प्रोबेबिलिटी. ऐसे 100 में से कुछ 70 के करीब पास हो रहे. आई टेल देम योर प्रोबेबिलिटी इज 2/3, बट उसके लिए वी नीड टू स्ट्रेस यू अ बिट. फिर हम उन्हें मेंस के लिए स्ट्रेस करते एंड देन दैट हैपेंस. बट होगा या नहीं होगा, ये तो उस दिन की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि नहीं. ट्रू और नॉट? सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो प्रिडिक्टिंग शॉर्ट term earthquake is impossible. Yes, long term we can see that this zone stress is being created, so the probability of earthquake is high. So Indian plate, the margin lies on Himalayan belt. Yes, I live in Madhya Pradesh, Bhopal.
So the probability of earthquake coming in Bhopal and the probability of earthquake coming in Kullu, automatically we understand. Sir, Kullu में ज्यादा होगी, इधर कम होगी. But कब आएगा ये कहना मुश्किल है. So what we have done is for hazard management, we have divided India into hazard zones. So that Himalayan belt, the Jammu Kashmir, Himalaya, Himachal, Uttarakhand, northeastern states, these are high on seismic danger. उसके बाद नेक्स्ट होमोसिज्मल लाइन आएगी, वो जोन नेक्स्ट हो जाएगा. भोपाल वाला लो होगा. भोपाल क्या है? इंट्राप्लेट. भोपाल इज व्हाट? इंट्राप्लेट. महाराष्ट्र इज व्हाट? इंट्राप्लेट. बट आई हैव अ स्टूडेंट, समबडी सेड सर ये मैंने महसूस किया महाराष्ट्र में. सो महाराष्ट्र में there were dams. In fact, Maharashtra is the state with maximum number of dams in the country. क्यों? पानी का शॉर्टेज है. हिमालय कह रहा हूँ, वेस्टर्न घाट के लीवर्ड साइड में है. सो उन्होंने बहुत सारे डैम्स बनाए. कोयना डैम बनाया. सो द डैम के वजह से पानी भरा एंड द प्लेट वाज वीकनेस. रिमेंबर हिस्टोरिकल वीकनेस. द प्लेट क्रैक हुआ तो झट से क्या आएगा? Tremors will be coming. And I've already told you it can be because of metamorphosis, it can be because of isostasis. कुछ भी नाटक हो सकता है. बट प्लेट आपकी स्ट्रेस हो रही है तो ये आएगा. ठीक है, दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग इज ये चूहा बिल्ली को पता चलता है कि नहीं चलता है? चूहा बिल्ली सांप कुत्ता भौंक रहा है. यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, whatever frequency you and I see and hear is a human frequency. We can see certain things which many animals cannot see. हम डार्क में नहीं देख सकते, कुछ एनिमल के पास नाइट विजन है. yes or no? सो बैट जो है, चमगादड़ जो है, नाइट विजन से चलता है कि नहीं चलता है? नहीं सर, वो तो अंधा होता है. फिर कैसे चलता है वो? सर वो तो सोनार से चलता है. उसके पास तो रडार लगा हुआ है. बीम 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 बीम. सोचो तुम्हारी तरफ बैट आ रहा है और उसका मान लो सोनार सिस्टम खराब हो गया, फचक. ट्रू और नॉट? आई एम जस्ट सेइंग, लाइक, सो एनिमल्स, they listen to things in different frequencies. They see things in different frequencies. So what is silence for us? They might be able to hear that. And more so, they are living in their burrows inside the earth. अब जब अर्थक्वेक आने वाला है, अर्थक्वेक के आने से पहले जो वीकर रॉक्स होंगे वो थोड़ा चटकेंगे कि नहीं? चक टक 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 आ रहा है तो बेचारा सांप, यार क्या नाटक है, बाहर निकल, कभी भी टूट सकता है. So that happens, like if you've heard, हमारे गांव में हमने सुना है कि वहां पर कुत्ता बिल्ली बाहर भौंकने लगता था. So that's just that animals have their own range of receptivity, and since if you are living in a burrow, those things will be there. You would know it first hand. But कैसे पता चलेगा वो सांप इसीलिए आया है या उसका पेट खराब था, शिकार करने आया? यू नेवर नो. नो, तो इसलिए इसमें तांत्रिक बाबा बनने की जरूरत नहीं है. We are looking at certain scientific things, so we know the stresses are being there. Stresses are there, but to what extent that will happen, that is not decided. Get that? So अच्छा क्या रहेगा, हम अपने को zones में बांट लेंगे. Everyone, let us look at the zone. High zone, very high zone कहाँ पर है? दिखाई दे रहा है? सब हिमालय में, लेकिन यहां गुजरात में भी दिख रहा है. गुजरात में आई टोल्ड यू दैट 26 जनवरी भुज अर्थक्वेक. तो जो भुज का अर्थक्वेक था, अपने को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, हमारे लिए वो जोन ही नहीं था. टिल दैट टाइम इट वाज नॉट देयर. तो भुज के अर्थक्वेक में हम इसको जोन 4 भी नहीं मानते थे, जोन 3 मानते थे, यहां पर आ ही नहीं सकता. नाउ देयर वाज अ हिस्टोरिकल क्रैक व्हिच इज कॉल्ड अल्लाह बंद फॉल्ट लाइन. यहां पर क्या था, हमारी प्लेट में क्रैक था, हमें पता नहीं था. एंड आई वांट टू टेल यू, यू माइट बी वंडरिंग कि इन लोगों को पता कैसे चलता प्लेट बाउंड्री. अरे शहादत के बाद ही पता चलता है. इधर से वोल्केनो निकलते हैं, भाई प्लेट बाउंड्री होगी तभी तो निकल रहा है. हमें पता ही नहीं था उधर फॉल्ट लाइन है. जब आ गया इतना बड़ा अर्थक्वेक आ गया, मेनी पीपल डाइड, जैसे तो हिमालय है नहीं. देन दे चेक्ड, अच्छा यहां पर एक वीकनेस जोन था, एंड दैट वीकनेस जोन got activated and अल्लाह बंद फॉल्ट got activated. अब हमें पता चल गया यहां पर है भाई फॉल्ट, तो हमने अपने मैप को क्या कर लिया, वो कर लिया. ठीक है. सो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है,
और कह रहा है मेरे क्वेश्चन से यूपीएससी में आएगा, लेकिन नहीं आया। जो नया वाला है वो मैंने अपने नोट्स में फिर डाल दिया। अब मैं अपडेट हो गया। अब मैंने कहा देखो पीछे वाला सारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। मैंने कहा फ्यूचरिस्टिक नहीं हो सकते। अब कल को यहां पर भी एक क्रैक हो, यू नेवर नो। सो ये जियोलॉजिकल सर्वे किए जाते हैं, रॉक्स के जियोलॉजिकल सर्वे किए जाएंगे थ्रू वेरियस टेक्निक्स विच यू एंड आई नीड नॉट नो अबाउट देम। वो भी रेडियोमेट्रिक सर्वेज होते हैं, दे आर डूइंग ऑल दोस थिंग्स एंड व्हेन दे आर डन विद इट दे फाउंड कि यहां पर एक जोन ऑफ वीकनेस है, दैट्स इट। ठीक है, सो इस मैप से क्या करना चाहिए, इस मैप से क्या करना चाहिए? इफ यू आर हैविंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड यू आर लुकिंग एट हाई सीज्मिक रिस्क जोन्स, वहां पे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। टिहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। लोग सड़कों पे है कि टिहरी में डैम नहीं बनना चाहिए। सरकार ने कहा क्यों नहीं बनना चाहिए, तुम विकास के सामने क्यों आ रहे हो, एंटी नेशनल हो? क्यों, किसको खतरा है अगर टिहरी डैम में कुछ हुआ तो? So if people in Uttarakhand, if people in Himachal are protesting against it, उनका बनता है कि नहीं बनता है? तो सर ये तो गड़बड़ है, फिर वहां पर तो कुछ कर ही नहीं सकते, एचईपी तो वहीं मिलती है। सो द गवर्नमेंट नीड्स टू एक्नॉलेज दैट टू देम दैट वी एग्री। विश्वास रखो, वी विल टेक एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रिकॉशन। एंड अब द आइडिया इज इट इज फूलिश टू मेक बिग मैसिव डैम्स इन हिमालयस। छोटे छोटे बनाओ ना, ये सबकी कैरिंग कैपेसिटी है। सुनो, सो ऐसा है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 7 दिन से सोए नहीं हो, सिर्फ संडे को ही सोते हो, तबीयत खराब हो जाएगी यार। ट्रू और नॉट? आप डेली सो, थोड़ा कम सो लो, दैट्स ओके। यू नॉर्मली यूज्ड टू स्लीप फॉर 8 आवर्स, नाउ यू स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, एवरी डे 5 आवर्स साउंड स्लीप, दैट्स गुड। नहीं सर, वो संडे को ना 5 into 6, यस, 30 घंटे सोऊंगा मैं, सारी थकान उतार दूंगा मैं। अरे कुंभकर्ण, दैट डजंट गो दैट वेज। तुम भी बीमार होगे, वो निकालना मुश्किल है, 30 घंटे सोना मुश्किल है। सो दैट्स व्हाट वी आर रियलाइजिंग, दैट व्हाई गो फॉर दीज बिग डैम्स। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, चाइना का वो आइडिया ऑफ 3 गॉर्जेस डैम इज डेंजरस। क्योंकि जब वो टूटेगा, अगर वो टूटता है, टचवुड ऐसा कुछ ना हो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि चाइनीज इंसान नहीं होते, with all the love that we have for Chinese, ऐसा थोड़ी कि बेचारे को डुबा के ही मारना है, yes or no? But the fact is कि when that thing breaks, एक तो वहां seismicity तो आएगी आएगी, and then the huge flood that it will carry, इतना पानी उसके पीछे आपने रोका है, yes or no? फिर तो सीधा ईस्ट चाइना सी में मिलेंगे सारे के सारे। True or not? So that's a dangerous thing that we are doing. So the governments across the world have realized this कि छोटे करो, इनको कहा जाता है मिनी हाइड्रो प्लांट्स नाउ। सो वी आर गोइंग फॉर मिनी हाइडल थिंग्स। ये जो आइडिया आपसे बात कर रहा हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू एज समबडी सेड सर आपके लेक्चर्स से हो जाएगा, तो आई एम ब्रिंगिंग दीज आइडियाज दैट अलोंग विद द अर्थक्वेक डिस्कशन वी मस्ट ऑल्सो सी द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट कि ये जोनेशन कहाँ काम आएगी। यस, सो इन तमिलनाडु में एक वो लगाया गया, कूडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। यस, तमिलनाडु पीपल केम आउट प्रोटेस्टिंग, अरे कूडनकुलम नहीं, हमारे यहाँ अर्थक्वेक आ गया तो हम मर जाएंगे। हमने कहा मैप देखो वे, तुम जोन 2 में हो, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं आना है, तुम इंडिया का सॉलिड पेनिनसुला हो, कुछ भी नहीं होगा। बट पीपल वर प्रोटेस्टिंग। तो अब यहां पे द गवर्नमेंट कैन एक्सप्लेन टू देम और नॉट। फिर प्रोटेस्टर्स ने क्या कहा, मैं कहा सर वो ऐसा तो जापान में भी था, जापान में, और वहां पर फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ, देयर फुकुशिमा प्लांट वाज डैमेज्ड, और प्लांट नहीं डैमेज हुआ था, कूलिंग सिस्टम गॉट डैमेज्ड। हमने कहा वो जापान है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तुम तमिलनाडु हो, कोई नहीं हिला सकता, फुल आशीर्वाद है तुम्हारे पास, कोई हिला नहीं सकता, सुनामी तो ला सकता है। अरे अंदर बना रहे, कोस्ट पे भी नहीं था, अंदर बनाया भाई, जापान का कोस्ट पे नहीं, फिर भी हमको तो आंदोलन करना, करो चलो भाई, yes or no? So public भी हैप्पी हो सकती है, but I'm saying this is where the policy makers can really reassure. I'm again saying आपका गवर्नमेंट के एक्शन में विश्वास नहीं है, yes or no? So you will not respect the government's decision. The government has to earn the respect of the citizens also. So if they have some doubt, तो बताइए क्यों नहीं बताएंगे?
यस नो सर, नरोरा पावर प्लांट है, नरोरा पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश में, यस। हमारे पास राजस्थान में रावत भाटा है, ककरापार है, ये सब आपने स्कूल में पढ़े थे। सो इनको हम इंडियन ज्योग्राफी में फिर करेंगे, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सीज्मिसिटी। इज एवरीवन विद मी ऑन दिस? सो ये हुआ आपका सीज्मिसिटी। ये सीज्मिसिटी मैप है, सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, यूएस भी अपना बना के रखता है। कहीं आप लोग सोच रहे हो अरे इंडिया में ऐसा है, हर देश बनाएगा ना। हर एक देश में जियोलॉजिस्ट का काम है कि यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है। कैन यू सी द डार्कर कलर्स ओवर देयर? क्योंकि वहां पर प्लेट का बाउंड्री है। प्रिडिक्शन वुड हेल्प रिड्यूस कैटास्ट्रोफिक लॉसेस। Can we predict it? They can be predicted long term, 10 to 100 years. They cannot be predicted short term. Seismic hazards can be assessed and people can be informed before that. क्या करना चाहिए? We can't stop them, but we can be ready for them. So earthquake रोक के दिखा दूंगा, ऐसा होगा नहीं. Understand what happens during the earthquake? Now you understand? Yes. So energy will be released, tremors will be there. Map those active fault lines, the ones which you know, geologists, that's okay. Ones which you missed and accident happened, अपने maps को update करो and do the zonation once again and develop construction codes to reduce building failures. As I said, earthquake does not kill. It is the buildings that kill because people live in buildings. So if your buildings are old structured and if you are in a high seismic zones, high seismic zone में building कैसी होनी चाहिए? रेजिलिएंट। अब एक बात बताओ, ये पूरा उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं कि नहीं? वो 4 धाम यात्रा, यस, इनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस होना चाहिए कि नहीं? देयर इज समथिंग कॉल्ड, एज योर टीचर विल टेल यू, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। ट्रू? तो जब 4 धाम यात्रा हो रही थी, 4 धाम यात्रा में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट उसका फेल हो जाता, होना ही होना है। उसके लिए क्या करेंगे आप माउंटेन्स में डायनामाइट लगा रहे हैं, डायनामाइट लगा के सड़क कर रहे हैं, आपके माउंटेन्स के रॉक कमजोर हो जाएंगे कि नहीं? यस। एंड इफ ट्रेमर हैपेंस, ज्यादा चांस है कि नहीं? बट 4 धाम यात्रा होनी भी थी और एनवायरमेंट क्लियरेंस भी लेना था, क्या करें? सरकार को करना भी है। अब सबको मोक्ष भी तो मिलेगा ना, जब 4 धाम यात्रा करोगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। वो लोग बात है यात्रा के बीच में मिल सकता है, कईयों को मिल जाता है। यस, आपने सुना फंस गए यात्री, चले गए यात्री, बिल्कुल ही आप सोच के ही गए थे तो ठीक है। ट्रू? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसी यात्राओं पर जब आपकी उम्र हो जाए तभी जाया करो। ऐसा नहीं शादी हुई चूड़ा पहन के पहुंच गए, ना ना ना, डोंट डू दैट। ये सब हनीमून के लिए है ही नहीं, ये जिस काम के लिए धर्म के लिए वही ठीक है, क्योंकि ये सारे धाम वहीं दिखा देगा। तो गवर्नमेंट के पास एक आइडिया आया, फॉर अ मैसिव प्रोजेक्ट लाइक दैट EIA इज अ मस्ट। गवर्नमेंट ने कहा कि यार एक बात बताओ, किस प्रोजेक्ट के लिए EIA नहीं चाहिए होती? तो उसमें है अगर प्रोजेक्ट इस साइज का हो तो नहीं चाहिए, और हमारा 4 धाम कितना है? इस साइज का है, इसके लिए नहीं चाहिए। बोले एक काम करो, 4 धाम के प्रोजेक्ट को 400 टुकड़ों में तोड़ो, ये किसको चाहिए? चल इस वाले को, इसको और छोटा कर, काट दिया, अब चलो बना दो, मोक्ष यहीं मिलेगा। तो उत्तराखंड में जिस तरह से सड़कें बन रही हैं, पीपल हु आर लिविंग ओवर देयर, हिमाचल के लोग शिमला में सड़कों पे आ जाते हैं कि भाई हमें ये डेवलपमेंट नहीं चाहिए, प्लीज दिस इज डेंजरस फॉर अस। क्लाइमेट चेंज भी होगा, क्लाउड बर्स्ट भी होगा, रिवर्स भी होंगे, उत्तराखंड ट्रेजेडी हैपेंड एंड मेनी सच थिंग्स वी आर इनवाइटिंग देम। क्योंकि हर किसी को दिल्ली में क्या लग रहा है, अगर गर्मी हुई तो कहां पे जाना है? उत्तराखंड जाना है, जाएगा, उधर भी गर्मी है यार, ये सुनो। और इस सब प्रोजेक्ट के लिए द नेचुरल कंट्रोल ओवर देयर विच इज कंट्रोलिंग द ग्राउंड इज द ट्रीज। आप फॉरेस्ट भी काटोगे, सो विंटर नहीं रहेगी, समर नहीं रहेगा, एंड वी हैव डन दैट। एंड दिस इज नॉट वी डूइंग इट, आई एम सेइंग अक्रॉस द वर्ल्ड ह्यूमंस हैव डन दैट, humans have done that and they constantly keep on doing that कि अपने को डेवलपमेंट मिल रहा है। So that's what we are talking about. So we really need to think about it. Yes sir, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, and again I am saying, you know, responsible deforestation और sustainable forestry involves कहीं और तो प्लांट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कहीं और कहाँ पे होते हैं? पेपर्स में होते हैं, ऐसा ना, वो पेपर्स में होते हैं और कटाई हमारे सामने होती है। दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट। और हम भी जान हथेली पे लेकर कहाँ जा रहे हैं?
चार धाम, सात धाम भी हो सकता है, वो सीधा ब्रह्मलोक भी हो सकता है। ट्रू। हाँ जी। सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो बिल्डिंग कोड्स, यहाँ पर दिल्ली के बिल्डिंग कोड सबसे खतरनाक, कोई कोड से बना ही नहीं है। सो दिस एरिया ओल्ड राजेंद्र नगर, so when partition of India happened, so refugees came to Delhi at many places, so the government allocated some lands to them. वैसे तो बेचारे कैंप्स में रह रहे थे, they said they could claim कि हमारा पाकिस्तान में ज़मीन थी तो हमें कुछ मिलना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, सरकार क्या बेस्ट ज़मीन देती है माइग्रेंट को, या ऐसी ज़मीन जहाँ पे कोई नहीं रह रहा होगा वहाँ पे डाल दिया जाता है? तो माइग्रेंट्स यहाँ आ गए, उन माइग्रेंट्स ने क्या किया, जैसे तैसे घर बना दिए। रोड्स हैं, यू बीन इन ORN, रोड्स हैं उधर। ये जो अभी हमने ट्रेजेडी देखी यहाँ पर कि बरसात में लाइक इतना पानी भर गया सड़क पे, क्यों? डू यू थिंक दीज आर प्लान्ड प्लेसेस? वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज के सामने मलकागंज है, वो सब पुराने। इनके घर कैसे होते हैं? टनल टाइप होते हैं, ये सुनो, ना कोई हवा ना कुछ, एंड पीपल आर लिविंग ओवर देयर। एंड फिर वो वीडियो पे आता है, देखो कैसी हालत में बच्चे रहे। अबे घर ही ऐसा था यार। So the idea was that this was not a planned area. This was not a planned area. People को जो मिल पाया, and that time imagine 1947, developed country, developing country, lot of resources are drained by Britishers. लोग अपनी मेहनत से जो कर गए, but आज वही buildings have turned into ticking time bombs. And what can we do? लोगों को कहा जाए कि evacuate करो and all that, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, क्योंकि आबादी भी तो सबसे ज्यादा है हमारी। कहाँ रखोगे? रिजर्व में थोड़े दिन यहाँ रह जाओ, कितने सारे आते हैं, मतलब दैट्स अ ह्यूज चैलेंज। ट्रू। सो बिल्डिंग कोड इज वन वेरी बिग थिंग दैट इंडिया मस्ट डू एटलीस्ट इन दोज एरियाज, बट वो अभी नहीं हो पा रहा है। सो दैट इज वन वे in which developing countries are themselves getting into that vicious trap of disaster striking them even if they don't want it to happen. Do we get that? Anji sir, how do geologists measure or find the stress area? Google. ठीक है, उसके बाद MSc जियोलॉजी, उसके बाद पता भी कर लिया तो क्या ही कर लिया, बट कर सकते हो, अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो जरूर करिए। So that's what we are talking about. अर्थक्वेक खत्म कर दे, इतने भारी मन से तुम देख रहे हो ऐसे कि पड़ोस में मैयत निकल रही है। इट्स ओके, अर्थक्वेक है। Let us be strong enough, let us understand earthquake क्या है। Understanding knowledge can help us. Yes, कल मुझे एक मिला, बोला यार मेरा कार का चालान हो गया। मैंने कहा कितना हुआ? बोला 42,000। क्या बात कर रहा है यार, 42,000? क्यों? इतने में तो सेकेंड हैंड दूसरी आ जाती। बोला यार वो ग्रैप 3 था और मेरी गाड़ी डीजल थी। हाँ, अब फंसा। अब की बार तो पढ़ के आया था पुलिस वाला। सो बोला कि यार 32,000 रुपीज इज द फाइन फॉर ग्रैप 3 में अगर डीजल नॉर्म्स कंप्लाई नहीं कर रहे। 32 के बाद 10,000 बिकॉज यू आर पोल्यूटिंग द सिटी। 42 उसने दिए हैं, एंड आई एम सेइंग इज 42 अ स्मॉल अमाउंट? तो मुझे लगता है एज अ सिटीजन वी शुड बी नोटिफाइड अबाउट इट। ट्रू और नॉट? एक बात बताओ, रात को 12 बजे लगी, जो लोग डीजल की गाड़ियां यहीं पर थी दिल्ली में, वो क्या करेंगे? और किसी को पता भी नहीं है। आई एम सेइंग, इज द गवर्नमेंट विद मी और अगेंस्ट मी? इट हैज टू बी विद मी, नो? कि भाई हम ये कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट को अगर ब्रॉडकास्ट करना होता है, सो गवर्नमेंट के पास दुनिया के मीडियम्स हैं कि नहीं है? सो व्हाई इज दिस ब्रॉडकास्ट नॉट बीइंग गिवन टू अस? मैंने कहा ना, ये जो डिजास्टर की हम बात कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं कर सकता? वो बीच में आपने देखा था, सडनली लोगों के फोन पे कोई मैसेज आ गया था। वो कौन कर रहे? डिजास्टर मैनेजमेंट चेक कर रहा था। सब पता है उन्हें, तो ये मैसेज क्यों नहीं भेजा? और ये मैसेज किस किस के पास गया था? सारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जहां जहां मिले पकड़ लो। किस लिए यार? लोगों के पास नौकरी नहीं है। कार को चलाना, अफोर्डेबिलिटी एक चीज है, सड़कों की जो हालत है वो है। आप कानून लगा रहे, बहुत अच्छी बात है, यस,
इंटीमेट, कोई इंटीमेशन नहीं. एंड ही सेज बहादुरी करके अगले दिन, अब यहीं पर हूं, ही वॉज नॉट फ्रॉम दिस प्लेस, अगले दिन फिर गया तो किसने फिर रोक लिया. उसने कहा अब तो चालान कट चुका, मैं दिल्ली में हूं. हाँ तो डेली 20,000 है. अगर बोला अरे छोड़ दो यार, कुछ नहीं, घर बार बिक जाएगा, दैट्स हाउ. कितनी उसने रोना पिटना किया होगा तब जाकर उसको छोड़ा कि इसको यहीं पे खड़ी कर दो. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो आई एम सेइंग दिस इज वेयर द डायलॉग, द डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज अबाउट क्रिएटिंग डायलॉग विद द सिटीजनरी. देखिए पॉलिटिशियन वही करेगा जिसमें उसको फायदा होगा. टेल मी, इज दिस नॉट अ फेलियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी? इसमें पॉलिटिशियन को क्यों लेकर आए? जो ब्यूरोक्रेट वहां पर होगा विल ही नॉट क्वेश्चन दिस? सर ये आएगा तो वी शुड हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ लाइन. सी सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेज अगर इतना एयर क्वालिटी होगा ग्रैप 3 विल कम इनटू फोर्स. सो आपके पास अगर वो है तो आपके पास इंफॉर्मेशन भी तो होना चाहिए. इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, शुड इट बी देयर और नॉट? ट्रू. सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट, दैट दिस शुड बी देयर. डिजास्टर मैनेजमेंट की जो चीजें हैं वो एक सेंट्रलाइज चीज होनी चाहिए. Such messages should reach the citizens and citizens will really feel safe and connected with their governance. That's what we are talking about. So good governance कहने से नहीं आता है, good governance के लिए कुछ लगता है. संसद में एक दूसरे को मारपीट फोड़ रहे हैं वो लोग, या तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा. इमेजिन कर क्या रहे वे, इधर हम चलान दे रहे हैं, उधर वो चलाने नहीं दे रहा, हम इधर चलान दे रहे, लगे हुए. ये बूढ़ा आदमी को मार दिया, ये जवान आदमी को मार दिया, लगे हुए सारे के सारे. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. वेयर इज दैट क्रेडिबिलिटी? वो तो अपना चलो संसद तो दिखाई दे रही है, द पॉलिटिशियन दिखाई देता है, इसीलिए उनको बोला जाता है कि दे विल कम टू द इलेक्टोरेट आफ्टर 5 years. आप उनको आंसरेबल बना सकते हैं. अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर. बाबू की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ऊपर देखे पीछे बैठा हुआ है. अगर ये 42,000 देने को तैयार है तो ले लेना, ठीक है, नहीं है तो मुझे मेरा कट पहुंचा देना. दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग भाई. आई एम सेइंग यू नो एज अ सिटीजन आई ऑल्सो एंजॉय माई राइट्स, आई शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट. कोई नहीं बता रहा है. ये बता रहा है कि सरकार जो है सस्ता अनाज दे देगी तुमको अगर वोट दोगे तो. क्यों? दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. डिजास्टर का नोटिफिकेशन, डिजास्टर ड्रिल्स हमारे उसमें एनडीएमए का वो है डिजास्टर ड्रिल्स. आपने किसी डिजास्टर ड्रिल में कभी पार्टिसिपेट किया? एनीवन? ड्रिल कौन सी ड्रिल में पार्टिसिपेट किया? स्कूल की नहीं, सरकार की. हाँ जी. अर्थक्वेक में विच स्टेट? हरियाणा ने करवाया, हरियाणा गवर्नमेंट ने करा. सो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दे सपोज टू डू दैट. दिल्ली के भी ड्रिल्स होते हैं, फायर मैनेजमेंट के, फायर के केस के ड्रिल्स हैं. कोस्टल एरिया में सुनामी मैंने आपको बताया, स्टॉर्म का बताया. दे आर गिवन फंड्स फॉर दैट. ड्रिल कराई, किसकी कराई? आपस में कर ली थी हम 5 लोगों ने. ऑफिस वालों को बुलाया, उनको बोला फैमिली भी लेके आना, और हमने कहा फायर भागो भागो भागो. सीधा वीडियो ले लिया, देखो भागते हुए लोग दिखाए गए और फंड्स आर सैंक्शनड. अबे हमारे लिए वो ड्रिल. That's what we are talking about. So disaster management is a disaster in India. That's not something wrong, you know, which we see that. So there must be public prosecutor who must be taking into consideration and will file a case. हाँ हाँ कानूनी हम कर सकते हैं. तो वो जाकर उसने कहा सर अब पैसा तो जमा हो गया, अब क्या केस करना है? पैसा तो जमा हो गया कि नहीं? एंड यू आर अ डीजल व्हीकल, यू आर अ डीजल व्हीकल. जो लॉ है, लॉ तो वायलेट हो गया था ना. इन माई केस माइन वॉज नॉट कमिंग इन दैट, सो दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू टेल हिम. सो व्हाट वी आर लुकिंग एट इज कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट फाइटिंग. हम क्या सरकार से लड़ने के लिए हैं? सोचिए तो सही. आपकी एनर्जीज क्या केस करने के लिए कि पेपर लीक हुआ था? उनका काम है ना पेपर सही से करवाना. दैट्स देयर जॉब. आप जाकर उसको स्टे लगा रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोर्ट कचहरी जा रहे हो, और जाते हुए स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हो, उनको पुलिस बजा रही है. ठीक है, जाके कचहरी में प्रोसिक्यूटर को करना चाहिए. So that's what we are talking about, sir. Before, but earthquake जरूर किया, वो भी drill. So somebody has done an earthquake drill. That's a good thing. Davis Tamang, are you from somewhere in the northeast states? So why there is dominance of IS in all the departments? देखो ऐसे मोक्ष वाले सवाल छोड़ देते हैं, भूगोल पे आ जाते हैं. ठीक है,
बेटर सवाल इज व्हाट डू यू नो अबाउट ओशंस? अब आया, जल्दी बताओ व्हाट डू यू नो अबाउट। हाँ जी, अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक से पहले क्या होगा? कई बार क्या होता है, वाटर लेवल चेंजेस इन द वेल, क्योंकि ग्राउंड में रीएडजस्टमेंट हो रहा है, सो रॉक्स में मे बी द वाटर गोज देयर, कुछ गैसेस लीक हो सकती हैं, रेडॉन और हीलियम, आपको पता नहीं चलेगा, but the trapped gases in the rocks, they can come out, and unusual animal behavior, but these are not very valid ones कि हमें हमेशा पता चलेगा. That's what we are talking. So Devis Tamang is saying Sikkim. So I'm glad that in the northeast states these are happening. Anyone from Uttarakhand here? Uttarakhand से कोई नहीं है? Himachal, any other hilly state you're from? Which state? जम्मू में ड्रिल हो रही है? कश्मीर में ड्रिल हो रही है? व्हाट ड्रिल? अर्थक्वेक ड्रिल होती? दैट्स गुड. सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो डिपेंडिंग ऑन, ये सब में ऐसा नहीं कि दिल्ली में सुनामी करवा रहा है. क्यों करवा रहा है भाई? ट्रू और नॉट? वो कई बार हो जाता है, वो पेपर भरने के दिल्ली में सुनामी भी दिखा देगा वो. अगर आप उनका ऑडिट करवा लोगे ना तो पता चलेगा इसने सुनामी की ड्रिल भी करवाई थी दिल्ली में. सो इट हैज टू बी रीजन स्पेसिफिक, जो आपका हैजर्ड है उसके लिए, सो दैट पीपल आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. डू वी गेट दैट? चलिए अर्थक्वेक बंद करते हैं. हाइड्रोस्फीयर. सो व्हाट डू वी नो अबाउट हाइड्रोस्फीयर? स्पेलिंग तो ठीक है. पानी. डिड वी टॉक अबाउट हाइड्रोस्फीयर एनीवेयर अभी तक? डिड आई टॉक अबाउट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. चलो तो आज सिंपल वाला क्वेश्चन करते हैं. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोस्फीयर. कल भी क्लास है, सैटरडे को क्लास है. सो पीपल हु डू नॉट नो दैट, सैटरडे को क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है. आपको ओशंस के बारे में बता दूंगा, सारा कल ही पढ़ा दूंगा. अगर क्लास छोड़ी तो फिर देख लेना. तुम्हारा ही पहले डिजास्टर वार्निंग कर दी मैंने. मैं ऐसे नहीं हूं पुलिस वाले की तरह, बताया भी नहीं हो क्लास अचानक ले. हेलो, आज ही सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा दूंगा. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो पहले तो आ गए हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर में बताओ पानी क्या है? व्हाट डू वी कॉल एज हाइड्रोस्फीयर? पानी कहां पर है? ओशंस. ओशंस में है. मैं इसको सरफेस वाटर बोलूं? सरफेस वाटर. सरफेस मतलब दिखाई दे रहा है. सरफेस वाटर के फॉर्म्स बताओ. ओशन सी, ओशन सी, बे, गल्फ, जो सोच सकते हो वो. ठीक है. और क्या? रिवर्स में. अच्छा, रिवर, लेक, पॉन्ड. और कुछ? और कहीं पर ग्लेशियर भी सरफेस वाटर. ग्लेशियर भी, ये भी सरफेस पे होता है. ग्लेशियर, कैन आई से फ्रोजन? फ्रोजन इज ऑल्सो देयर. अब इसके लिए ना वी रियलाइज कि यार ये पानी ना, ये सॉलिड स्टेट में, वाटर इज लिक्विड, तो इसके लिए एक नया स्फीयर बना दिया गया. एंड यूपीएससी हैज आस्क्ड जीएस स्टूडेंट्स अबाउट दैट, क्रायोस्फीयर. तो ये सवाल आ गया, व्हाट इज क्रायोस्फीयर? पीपल स्टार्टेड क्राइंग. ये आगे पढ़ाया नहीं. अरे आपने क्रायोजेनिक वर्ड कई बार सुना. क्रायो मीन्स रेफ्रिजरेटेड, क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन ऑफ समथिंग. सो क्रायो मीन्स कोल्ड. सो जो भी हमारा फ्रोजन स्फीयर है, द फ्रोजन स्फीयर, so what does it have? It has the polar ice caps. पोल पे आइस कैप्स हैं. यस. उसके अलावा डू वी हैव ग्लेशियर्स? यू हर्ड ऑफ इन ओशंस फ्लोटिंग वालों को क्या कहते हैं? आइसबर्ग्स भी होते हैं. ठीक है. तो ये कहां पर है? पोल रीजन्स पे. सो अंटार्कटिका में देयर इज आइस, आइस विल ब्रेक एंड इट विल फ्लोट इनटू द ओशन, दैट इज कॉल्ड एन आइसबर्ग. एंड पूरा का पूरा आइस शीट के जो एजेस होते हैं उनको ग्लेशियर्स कहते हैं. तो दैट्स ग्लेशियर. ग्लेशियर इज लाइक अ फ्रोजन रिवर. फ्रोजन रिवर इज कॉल्ड ग्लेशियर. उसके अलावा ये तो पोल में किया. अब दीज आर नॉन पोलर एल्पाइन ग्लेशियर्स. non-polar alpine glacier. Whenever the word alpine comes, it means to do with height. So height के साथ ice होती है. So are Himalayan peaks ice covered or not?
हिमालयन पीक्स आर आइस कवर्ड. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि ये हाइट के साथ एक एक कंट्री न्यूज में है, उसके सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए. वेनेजुएला, तो करंट अफेयर्स भी आपके पास. वेनेजुएला बिकम द फर्स्ट इंडियन कंट्री जिसके ग्लेशियर्स खत्म हो गए. सो बाय द हाइट इट शुड हैव बीन frozen, but because global warming is happening, so all that has gone. इससे पहले this happened to Kilimanjaro also. Many books say that like the place with ice closest to equator, आंसर होता था Kilimanjaro. अब Kilimanjaro पे है ही नहीं. So what has happened? It has changed. So we were talking about this. सबसे ज्यादा कहाँ पर है अगर मैं कहूँ तो HK ना, हिंदू कुश, हिमालय एंड काराकोरम. HK जो हमारे जो जोन है ऑफ हिमालय, सो हिंदू कुश गोज इनटू अफगानिस्तान, यस, हिमालयज इनटू इंडिया एंड काराकोरम गोज इनटू कहाँ गया ये, चाइना की तरफ जा रहा है? नहीं, ये भी उधर ही जा रहा है, वेस्ट की तरफ ही जा रहा है. रिमेंबर दैट क्या हमने कहा था, पामीर नॉट से आपको दिखाया था हिमालय, कुनलुन, टियानशान, यस, उसी में आता है हिंदू कुश एंड काराकोरम. सो काराकोरम लद्दाख के ऊपर, यस, एंड हिंदू कुश गोज इनटू अफगानिस्तान. इसी को थर्ड पोल भी कहा जाता है. व्हाट इज दिस कॉल्ड? थर्ड पोल. वाई थर्ड पोल? एक नॉर्थ और साउथ तो हो गए आइस में, यस, इसमें इतनी आइस है, दिस इज द बिगेस्ट वन. एंड एज पर आईपीसीसी, अब तो आपको सर ने आईपीसीसी बता दिया होगा, क्लाइमेट चेंज में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, बताया कि नहीं इसके बारे में? क्या बात कर रहे हो सर, कोई कुछ नहीं बताता, आप ही बता रहे हो. अभी क्लाइमेट चेंज पे बात नहीं हुई है, कल ही बताया था. ये सारे गजनी क्यों महसूस कर रहे फिर? अच्छा सर, उस बैच में बताया, इस बैच में चलो कम से कम गारंटी बताएंगे. ये सुनो, Intergovernmental Panel on Climate Change. This is a body of scientists which is monitoring climate change, and as per them, HK, these glaciers are melting very fast. Melting very fast में क्या होगा? पानी ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी, यस, फ्लड आ जाएगा. और जब चाहिए होगा तब आइस नहीं होगी, प्रॉब्लम. थ्री गॉर्जेस डैम का क्या होगा? थ्री गॉर्जेस डैम इज एबल टू हैंडल सम वाटर. अगर आइस ज्यादा मेल्ट होगी तो चांस, हैजर्ड बढ़ गया कि नहीं? दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो भाविका इज सेइंग, सर वी हैव फेस्ड फ्लड ट्रेजेडी this monsoon because of building infrastructure and there was no space for rainwater of drainage in Vadodara. So everyone, ये जो भाविका जिसकी बात कर रहे हैं, this disaster is called urban flash floods. This is not the case of Vadodara alone. Most of the cities, अभी चेन्नई ऐसे भरी हुई थी कि नहीं? चेन्नई भरी हुई थी. उसमें क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिक wires are there, yes, people don't know much about it. Sewage क्या होगा, food कैसे होगा. अब urban areas are prone to flooding because of climate change. So it's a very very important thing of the municipal administration of that state, of that city, to ensure that such drills are created, people are aware about it. But then as we said, the administration somewhere lapses are there, and these are very very big things. इन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए. इन मुद्दों पर you should be talking to your political representatives rather than whatever we are talking to them about this. Is everyone okay? So ये हुआ हमारा क्रायोस्फीयर. इधर आगे एक तो सरफेस वाटर, और कौन सा है? ग्राउंड वाटर. सो ग्राउंड वाटर, अच्छा, इसमें सरफेस वाटर में एक और चीज रह गया, वाटर एंड सॉइल मिक्स्ड. क्या बना? कीचड़. कीचड़ तो स्वैम्प्स, मार्शेस, इन्हीं को आप वेटलैंड्स, वहां भी तो पानी है ना, तो इनको कहा जाता है किडनीज ऑफ द प्लैनेट. सो दे आर प्यूरिफाइंग द वाटर, वाटर इज सीपिंग थ्रू देम. सो ये सब सरफेस वाटर. अब इसको हम यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग.
इसको हमने यहां क्वेश्चन मार्क करके कहां ले गए हम, क्रायोस्फीयर। ग्राउंड वाटर में क्या है, वाटर सीपिंग इनसाइड द रॉक्स, विच रॉक्स, इग्नियस और सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री। सो इंडिया में सेडिमेंट्री रॉक्स कहां है, नॉर्थ इंडियन प्लेन में। इग्नियस कहां है, साउथ इंडिया में, जहां तमिलनाडु में दे आर सेइंग अर्थक्वेक आएगा। भाई तुम इग्नियस हो, तुम्हें कोई नहीं हिला सकता, ट्रू और नॉट, स्ट्रॉन्ग इग्नियस रॉक्स। सो वहां पे ग्राउंड वाटर नहीं होता है। सो इन नॉर्थ इंडिया मोस्टली you are looking, if the water is not there in the rivers, people are looking for water through hand pumps, yes, in the wells. Why? Because ground water is there. South India में वो पानी जा ही नहीं सकता है, because it is igneous rock. So traditionally South Indian water storage system is not a well based system, it is a tank based system. So what those people used to do is कि एक टैंक बना दो, रेनफॉल विल हैपन, उससे वो भरेगा, अदरवाइज रिवर के रास्ते में बनाओ ताकि उससे हम एक कनाल निकाल के आ जाएं. सो दैट्स व्हाट, सो रिवर के साथ क्या होता है, एक कनाल भी हो सकती है. व्हाट इज कनाल, व्हाट इज कनाल? सो द रिवर इज सतलुज, river is Satluj and Bias. They flow through Himachal and Punjab. They flow through Himachal and Punjab. States of Haryana and Rajasthan don't have a river. तो हमने क्या किया, हमने रिवर में से एक नैरो स्ट्रीम हमने बना दिया, हमने खुदाई करके एक नकली रिवर बना दी, एंड दैट इज कॉल्ड अ कनाल, मैन मेड कनाल. सो एक चैनल हम बनाते हैं एंड वी कनेक्टेड टू सतलुज. सतलुज का पानी कहां पर आ जाएगा, हरियाणा में भी आएगा और राजस्थान में भी आएगा, विच इज द फेमस इंदिरा गांधी नहर. सो ये कनाल होती है, सब सरफेस वाटर. डू वी गेट दैट? सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज सरफेस वाटर, हाइड्रोस्फीयर. दुनिया में पानी की क्या स्थिति है, ये ग्राउंड वाटर थ्रू सीपेज इन कौन से रॉक्स, परमिएबल रॉक्स. सो परमिएबल रॉक से दे विल गो इनसाइड, but they will go inside because of which force? Gravity is, they are going down, and कहां तक जाएंगे, जहां पर एक नॉन परमिएबल रॉक मिल गया. So when they reach a non permeable rock, they'll start collecting, and that pool of water is called aquifer. क्या बोलते हैं उसको, AQ कर लीजिए, AQUIFER. I want all students who are attending this class be comfortable with the vocabulary. So groundwater aquifer क्या होता है, a pool of water which is trapped in the rocks deep inside because ऊपर से percolate किया और नीचे जाकर इकट्ठा हो गया. Get that? The water level in the rivers, does it fluctuate? Yes or no? Why? रिवर, पॉन्ड, लेक, पानी फ्लक्चुएट करता है कि नहीं करता है? क्यों करता है? सर, इट इज अ मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इफ द रिवर इज गेटिंग मोर वाटर, सप्लाई की क्या पॉसिबिलिटी है? हाउ डज रिवर गेट वाटर? रेन से आ सकता है या फिर ग्लेशियर मेल्ट से आ सकता है. सो इफ देयर इज मोर तो रिवर में ज्यादा पानी होगा, अगर नहीं है तो कम होगा. अच्छा, कैन इट ऑल्सो बी रिवर हैज लेस वाटर बिकॉज दैट वाटर इज गेटिंग evaporated, that water is getting evaporated or consumed? That can also be the lake. से हम क्या कर रहे हैं, हम पानी ड्रॉ कर रहे हैं. हमने एक प्रोजेक्ट बना दिया, उसमें लेक में क्या किया, पंप लगा दिया, पंप से हम उस पानी को ले जा रहे हैं. So that can it fluctuate or not? So surface water bodies, their water will change with the time, with the season, with the demand of the people. True? Groundwater, does that also change? या उसका लेवल फिक्स रहता है? चेंज होता है. क्यों चेंज होता है? सर अगेन सप्लाई एंड डिमांड. अगर रेनी सीजन है, इन रेनी सीजन मोर रेन हैपेंस, मोर पर्कुलेशन, ज्यादा बढ़ गया. एंड इफ इट इज ड्राई सीजन, सो रेन तो आने रही, एंड पीपल आर ड्रॉइंग अ लॉट आउट ऑफ इट, बी इट फॉर देयर ड्रिंकिंग पर्पसेस, फॉर बेथिंग पर्पसेस, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. तो वो क्या होगा, वो नीचे हो जाएगा. द लेवल of water in ground water, that top level is called water table. क्या बोलते हैं उसको, water table. So water table can go up and down.
Do we get that? Which season does the water table go down? Summer में it will go down. And which season will it come up? Rainy season. Winter नहीं, rainy season. कितने लोग लॉजिक से अब मुझे बता सकते हैं कि कुआं क्यों सूख जाता है? Why does the well go dry? कैसे हुआ? सर वो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया. सो हमने सोचा था इतने में पानी आएगा. It used to be there. But now what is happening? Because recharge did not happen, so it has gone down. ऐसे हैंडपंप पे पानी आना बंद हो जाता है. हैंडपंप पे पानी आना बंद होगा क्योंकि पानी नीचे चला गया. So that's a very normal thing. You must understand. Did we understand something about groundwater? Did we understand something about surface water? Did we also understand something about frozen water? Yes. That brings me to the next topic, which is hydrological cycle. ठीक है. So ये जो water है in the on the planet, first of all, water is a finite resource. Finite, the good thing is recyclable resource. Whatever water planet Earth has, it is finite. कहाँ से आया? Where did the water come from on planet Earth? Volcano से water vapor आया. What is the source of it? So well का water कितना deep होता है? खुदाई तुमने करनी है भानु, तुम्हारी मर्जी. कह रहा वेल का वाटर. कैन यू अंडरस्टैंड? इसको कुछ समझ में नहीं आया. वाटर टेबल क्या होता है? यस, हाँ जी. Degassing. So what is the source of water? So water on earth, source क्या है? मार्स पे है क्या? मार्स पे हमें थोड़े से रेमिनेंट्स मिले, हम कोशिश कर रहे ढूंढने की. मून पे वाटर है? नहीं, ऐसा दिख नहीं रहा है. थोड़ा बहुत है या नहीं है? तो ढूंढ रहे हैं हम लोग. जैसे मिला सर बता देंगे. अपने पास है, अपने पास दबा के पानी है. कहां से आया? सोर्स. पहला डीगैसिंग. डीगैसिंग. अर्थ के इंटीरियर में लॉट ऑफ वाटर ट्रैप्ड इन द रॉक्स इटसेल्फ, और मेंटल में अभी भी मेंटल में लेयर्स ऑफ वाटर है. एंड वाटर, इमेजिन मेंटल इज एट हाई टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस, एंड वाटर इज द वाटर क्या बन गया होगा? स्टीम बन गया होगा. फुल प्रेशर मार रहा होगा कि नहीं? दैट इज व्हाई वोल्केनोज आर ड्रिवन बाय द स्टीम इंजन. चल सकता है पूरा का पूरा, जियोडायनेमिक्स चलाता है वाटर. So Earth's internal layers still have that, and all that water came out through volcanoes, and when it condensed, it created the hydrosphere. I have already explained that. Plus degassing from Earth's interior. Second जो है extra terrestrial sources, इसमें comets. Remember that comet with a tail? So comets are largely made up of rocks and ice. So when they will collide with Earth, will they bring water with them or not? Not a very big part has come from comets, but a significant part. कुछ 10-12-15% वो भी लेकर आए होंगे. तो यहां से पानी आ गया. अब और कहीं नहीं आ रहा है. ऐसा नहीं है कि मार्स से आ रहा है. सर कॉमेट्स तो अभी भी आते हैं. टकरा रहे हैं क्या? अब नहीं टकरा रहे. Those were billions of years. Those were the orbits which were settling down and all those things happen. अब तो the solar system has got settled down. Get that? So this is the water that we have. It is finite and it is recyclable. अब इससे ज्यादा नहीं है. So I was surprised, you know, like UK passed a bill that we will not use recycled water. कहां से लाएगा? कहां से लाएगा? We will take water only from the natural springs. आपको पता है नेचुरल स्प्रिंग्स वहां पे कहां से आया? कहां से आया? वो यूके वालों के लिए स्पेशली लगाया था. भाई यही है बिलियंस ऑफ ईयर्स से. जिसको फ्रेश स्प्रिंग वाटर सोच रहा है, वही डायनासोर छोड़ के गया था. कैसे छोड़ गया था मुझे पता भी नहीं. थैंकफुली
It went into groundwater. Percolation happened, seepage happened, purification हो गया, किडनी ऑफ द प्लैनेट ने उसे फ्रेश किया है. कहीं वो सोच रहा हो ऐसे नेक्स्ट टाइम सोचना चाहिए इनको क्या पी रहे हैं. वेरी स्ट्रेंज यार. तो मतलब पढ़े लिखे लोग ये कह रहे कि हम लोग रिसाइकल्ड वाटर नहीं लेंगे. हम कौन सा कह रहे फ्लश करने के बाद उसी पानी को रिसाइकल करके पी ले यार. बट प्लैनेट अर्थ का जो सिस्टम है उसमें तो वही है कि नहीं. तो अगर आपकी रेन होती है तो वो कहां से है. दिल्ली में समर में रेन हो रही है, कहां से आ रहा है वो पानी. यमुना से ही आ रहा है. अगर यमुना में देखो तो काले रंग का है, उसमें फ्लेवर भी है. बट तुम्हारे ऊपर हाँ ठंडा ठंडा फ्रेश फ्रेश बूंदे हो तो ऐसी हो, वहीं से आई है बूंदे, तुम्हारी हमारी दी हुई बूंदे हैं. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. यस. सो इमेजिन पढ़े लिखे लोग कह रहे कि हम रिसाइकल वाटर नहीं करें. तो पहले तो हम देखते इसका एक पेरेंट रिजर्वायर होगा, मास्टर रिजर्वायर. क्या बोलेंगे उसे. सो वाटर का मास्टर रिजर्वायर आर द ओशंस, बिकॉज 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. तो इसलिए अगर मुझे डायग्राम बनाना हो तो मैं ऐसा बनाऊंगा. एंड दिस इज ओशंस. Ocean is called the source pool of water, master reservoir. ठीक है. Oceans have it. Now from oceans, ocean, can I call it hydrosphere? So basic source of water is ocean. From ocean, because of temperature, it rises through the process of evaporation, and through evaporation, when it cools, it creates clouds, condensation. Evapo and condensation. सर COND सर ये क्या होता है. अभी थोड़ा सोचो ना, कॉन्ड से क्या होगा, कॉन्डेंसेशन ही होगा ना. यस. और evaporation. So evaporation is turning it into vapor, and as they cool they turn into clouds, droplets. But do you see that the water has changed the pool. It is no longer in the hydrosphere. अब कौन से स्फीयर में आ गया. Atmosphere. So this is atmosphere. Atmosphere. If this was the source pool, atmosphere is called the exchange pool. What is it called? Exchange pool. So water has moved from the ocean, from the hydrosphere to the atmosphere. Can it come back now? Oh yes, it can come back, sir. These clouds will create rain. So what is this? This is precipitation. And will precipitation happen only on land? No sir, they can travel. दोनों जगह हो गया. So precipitation is bringing it back. Can I see the cycle? Hydrological cycle. The same water, it will go up and it will move. With me on this? Now Earth's surface is not uniform. And this water is traveling. So यहाँ ओशन से जो उठकर गया है, ओशन से तो बहुत सारा पानी उठकर चला गया. ओशन से a big amount has gone into the atmosphere. A big amount has gone into the atmosphere. वो थोड़ा थोड़ा करके वापस आ रहा है. एक तो आ गया precipitation से. Yes. Now when the precipitation happens here, this is very cold. It gets trapped here. What is this? Ice or cryosphere. Can I say after atmosphere it can reach cryosphere also? So कहां पर पहुंच गया? Cryosphere. Get that? So this has reached here also. Now when it rains, can this water
Can this water get collected and flow on the land terrestrial part? This is called surface runoff. What do we call it? Surface runoff. But tell me, is that also bringing the water back to the oceans? So ये ग्लेशियर भी मेल्ट होगा, सब कुछ कहां पर आएगा? ग्लेशियर विल मेल्ट, वो इधर लाएगा. So everything is coming back. Can we see a cycle being created? So a cycle is being created. Now, what happens is, if the rocks are sedimentary rocks, there is a possibility that the water will seep inside. Yes? And create what? Ground water aquifers. Yes? और ग्राउंड वाटर से भी हम बाहर निकाल सकते हैं उसको. ट्रू और नॉट? सो ग्राउंड वाटर एक्विफर्स ऑल्सो विल इवेंचुअली pass the water to the ocean. This cycle is called hydrological cycle. Homework. Write in your own words. चलेगा? Whatever I have explained, can we write it in our own words? कि वाटर कहां से आया, दैट्स देयर, एंड दिस इज फाइनाइट वाटर. यही है, इट इज एक्सचेंजिंग द पूल्स. इट गोज इनटू द एटमॉस्फेयर, इट गोज इनटू द क्रायोस्फीयर, एंड इधर कहां पर आ गया? लिथोस्फीयर. एंड इफ अ प्लांट टेक्स अप दैट वाटर, बायोस्फीयर में भी घुसेगा. व्हेन द बॉडी विल डाई, विल इट लूज दैट वाटर ऑल्सो? तो जो पानी है वो फिक्स्ड है, वही चल रहा है, आगे पीछे वही रहने वाला. ठीक है? Are we okay with this? Done? So we are talking about hydrosphere. First is hydrosphere. And again, my job is, though we are going to talk about oceans, कल से क्या बात करेंगे? Oceans पर. बट यूपीएससी पिछले 3 साल में मेन से एक ही थीम पे क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट इज वाटर. और क्वेश्चन का एसेंस ये है कि व्हाट इज द impact of climate change on hydrological cycle. Another way of saying this is, examine the impact of climate change on water resources of earth. Get that? आसिफ राशिद. ये आसिफ राशिद थोड़ी देर पहले पूछ रहा था कि सर आपके नोट से हो जाएगा. ठीक है, अभी आसिफ राशिद पूछ रहा है सर ओशनोग्राफी, क्योंकि आसिफ राशिद को ये लग रहा है कि सर तो ओशन पढ़ा नहीं रहे. तो चचा, थोड़ी देर पहले जब तुम चाहते थे कि मेरे नोट से सब कुछ हो जाए, तो तुम्हारा टीचर हाइड्रोस्फीयर को पूरा पढ़ाएगा आसिफ राशिद या फिर सिर्फ ओशन पढ़ाएगा? वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे थे? मजा लेने के लिए. अब मैं ले रहा हूं मजा, मौका तो मुझे भी मिलेगा. नेक्स्ट टाइम सोच के करना, ऐसे मशहूर होने में कोई फायदा नहीं है. सर ओशनोग्राफी कल इनामी स्कीम कल खुलेगी. यस, आसिफ राशिद का नाम नोट कर लो, मौका मिले चौका लगा देना, बैन कर देना. ठीक है, नेक्स्ट टाइम कुछ लिखेगा सर ओशनोग्राफी. चल वी कम बैक. तो ये उन स्टूडेंट्स का है जो एक तरफ दे कास्ट एस्पर्शन, सर इन नोट से हो जाएगा क्या, और जब टीचर करा रहा है होलिस्टिक, ये तो मेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है. आप चेक कर लो पिछले 3 मेंस का, GS3, GS1 भी नहीं कह रहा हूं, GS1 में भी आ जाता है, GS3 में भी आ जाता है, विच इज एनवायरमेंट, कि यार ये पानी के रिसोर्सेज का क्या हो रहा है. तो मुझे आंसर दीजिए क्या हो रहा है क्विकली. पोल्यूट हो रहा है. क्लाइमेट चेंज से क्यों पोल्यूशन हो रहा है? आप ये कह रहे हैं कि पोल्यूशन हो रहा है.
डिड आई आस्क यू द क्वेश्चन कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर? मैंने ये तो नहीं पूछा, तो आप बोल रहे पोल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से पोल्यूशन हो रहा है। सी लेवल, सी लेवल चेंज हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। और क्या हो रहा है? फ्लड बहुत आ रहे हैं सर, फ्लड आ रहे हैं, ओके, व्हाट एल्स? ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है सर। रेन इज रिड्यूसिंग, आई गेट दैट, व्हाट एल्स? भोसले इज सेइंग रेन इज रिड्यूसिंग। सो अब क्या प्रॉब्लम ये है कि सच पॉइंट्स इज नो लिमिट टू इट। कोई लिख रहा है सी लेवल फॉल, कुलदीप कह रहा है सी लेवल फॉल, और उमा कह रही है सी लेवल इंक्रीज। सो हु इज करेक्ट, कुलदीप या उमा? उमा सही कह रही है कि सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कुलदीप कह रहा है सी लेवल फॉल हो रहा है। रिमेंबर कुलदीप ने कहा सर मैं तो आपके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। मुझे क्लियर है कुलदीप, तुम बीच में कभी भी कुछ भी कर रहे हो तो ठीक है। अब ये एनसीईआरटी दिखा देगा फलानी जगह पे तो फॉल हो रहा है सर देखो। So let's not get into that. ये आसिफ हुए and all that, they are not into this thing. मुझे प्रॉब्लम ये है कि when I train my students into brainstorming, so आपके पास बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे, you will have a lot of ideas, but having only ideas, अभी तक तो ये था you did not have ideas, there was constipation of ideas, अभी diarrhea of ideas। तो constipation और diarrhea दोनों healthy state नहीं। आइडिया इज वी हैव टू गिव द आंसर। सो मैं एक आंसर आपके सामने दिखा रहा हूं, अभी आंसर लिख नहीं रहा हूं, लेट मी शो यू दैट आंसर। मुझे इंपैक्ट किसका देखना है? सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बनाता हूं आपके लिए, यू डोंट डू दिस, ये कल कंटिन्यू कर लूंगा, पहले समझ लो। जो भी पानी आता है आसमान से आता है, सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ऊपर से ही आएगा, रेन से तो आ रहा है सब जगह पर, यस। सो ऑल वाटर इज कमिंग ओवर हियर। I want to tell you, most of that water goes into groundwater. जितना भी पानी आपके planet Earth पे, if humans were not there, most of it will go where? In the groundwater. We'll look at those data also कि कितना है, ठीक है। कल मैं आपको डेटा, बल्कि एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा वाटर रिसोर्स, प्लीज रीड दैट विल हेल्प यू, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इसमें से कुछ पानी, some water comes on the surface also. This is surface water, this is groundwater, or some water evaporates also little bit, and this is atmosphere, all water. This is natural cycle. I've shown you the water goes from the ocean, all that water falls, it is in the surface, it is in the groundwater. If you did not know, most of it goes to the groundwater, either surface पे थोड़ा सा atmosphere. Get that? Now I am changing the color. So the color is, say, green color. Green color will signify green color will signify यार इसको ब्लॉक करो, ये गांधी जी इसका नाम है, ये अपने परमानेंटली ब्लॉक करो, ठीक है। हाँ जी। सो नाउ ऑल वाटर रिमेन्स सेम, ये तो प्लेनेट का पानी है ना, ये ऐसे ही आ रहा है, ऑल वाटर रिमेन्स सेम। बट what happened was we have concretized the earth, so the percolation of groundwater has reduced. So अब ये पानी इतना ही रह गया, so this is the new one. So what change has happened? Remember the change that has happened? अब ये इधर थोड़ा सा ही रिचार्ज हो रहा है, तो बढ़ कौन सा गया? सरफेस का एरो अब बड़ा हो गया है, ट्रू। And because the heat is increasing, so what is happening? Evaporation भी बड़ा हो गया है। So what do we have in the atmosphere now? More water vapor. Tell me
what is the driving force for a cyclone? Latent heat of condensation. बताया था latent heat of condensation. हम ही तो कर रहे हैं वाटर वेपर, कर रहे हैं कि नहीं? तो इससे क्या आता है हमारे लिए? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. व्हाट विल हैपन? एक्सेस रेन. बहुत सारी बारिश हो रही, कुछ ही समय में वडोदरा में शी वाज टॉकिंग अबाउट की सिटी फ्लड हो जाती है. फ्लैश फ्लड्स विल हैपन. द रेन विच वाज टू हैपन इन द होल ईयर हैपेंड इन 24 hours. क्लाउड बर्स्ट विल हैपन. साइक्लोन्स विल नॉट कम, सुपर साइक्लोन्स आर कमिंग. तो आप बताइए ये पूरा का पूरा मेरा सिस्टम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ठीक है. थोड़ा बहुत पानी था, हम शहर में मुस्कुराते हुए रहते थे, अब शहर में बहुत सारा पानी आ गया, तो क्या होगा? फ्लड. हाउ डू यू मैनेज इट? सो शी टॉक्ड अबाउट वडोदरा. आई एम सेइंग एवरी सिटी हैज दिस प्रॉब्लम. किसने किया? हमने ये छेड़खानी कर दी. किसने की छेड़खानी? हम लोगों ने छेड़खानी कर दी. सो आई आस्क यू टू रीड एनसीईआरटी एट अ स्पीड. सर समझ नहीं आ रहा सर, धीरे धीरे करवाओ. सो नेचर had kept a hydrological cycle which flows slowly, because when the water goes inside the groundwater, it is supposed to stay there for thousands of years. It is like your दादा दादी का खजाना जो नीचे दब गया है, जब जरूरत होगी तब ले लेना. बट जो सरफेस का पानी है वो डेली वाला है. अब हमने क्या कह दिया? वी हैव एक्सीलरेटेड दिस साइकिल. द स्लो वन वो कम कर दिया है, द फास्ट वन अब भी आ रहा है, बारिश आती जा रही, हैंडल करो. योर सीवेज सिस्टम, योर ड्रेनेज सिस्टम, एवरीथिंग विल फेल. आप साइक्लोन के लिए तैयार हो? देयर इज एंड ही नहीं हो रहा, देयर इज सो मच ऑफ मॉइस्चर एंड द साइक्लोन इज गेटिंग एनर्जाइज री एनर्जाइज. व्हाट डू यू डू विद दैट? ट्रू और नॉट? अब आपका पानी, अब आपका क्या हुआ है? पानी हो रहा है खत्म, बारिश बंद हो गई. आफ्टर फ्लड नो मोर रेन. नो मोर रेन, वेयर डू यू गेट योर वाटर? ग्लेशियर्स तो मेल्ट हो गए और सब कुछ हो गया था. नाउ द ओनली सोर्स इज ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर तो आपने खाली कर दिया, तो रिचार्ज ही नहीं हो रहा है. व्हेन द वाटर कम्स वेरी फास्ट, योर ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज ऑल्सो नॉट इफेक्टिव. फॉर रिचार्ज टू हैपन, वाटर मस्ट कम ड्रॉप ड्रॉप, धीरे धीरे आना चाहिए था. द रेनफॉल शुड बी स्प्रेड आउट इवनली इन टाइम. बट व्हेन इट हैपन्स वेरी वेरी कंसंट्रेटेड इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आपका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं हुआ. सो ग्राउंड वाटर इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट. सूखे से कौन बचाता था? ग्राउंड वाटर. ये आपने छोड़ा नहीं. सूखा भी मारेगा, फ्लड भी मारेगा. योर ग्लेशियर्स आर ऑल्सो गॉन. यस. And your whole cycle got accelerated. You were happy that your rivers had water. Now you are crying, इतना पानी एक साथ क्यों आ गया? True. And atmosphere में भी आपने bombs भेज दिए. Your water vapor is nothing but the energy that is required for all those things. Tell me, what is the impact of climate change on hydrological cycle? अगर ये बनाएंगे and explain करेंगे, will it leave an impactful answer? आसिफ भैया ट्राई करना, है ना? ट्राई करेंगे. आंसर लिखने का तो बहुत कुछ है. किसी ने कहा सर आंसर दिखा दीजिए. हाँ देख लिया, मैं तो दिखा भी दूंगा, मेरे पास बहुत सारी चीजें. देयर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस. इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिक्टेशन. हमारे वाटर रिसोर्सेज को कैसे इंपैक्ट किया? कैन वी ड्रॉ फ्रॉम दिस? अब आपने जो ब्रेनस्टॉर्म किया था, ऑल दोज विल दे बिकम बॉडी पॉइंट्स फॉर दीज थिंग्स. So whatever you brainstormed is amazing. Very good that you were able to do online student, offline student. आप अच्छा सोच रहे थे, लेकिन अब उसको एक रूपरेखा देनी पड़ेगी. We have to give it a way in which we can approach the answer. This is how it is going to happen. So I hope you'll give it a thought. सोच के आइएगा. अगर कुछ आंसर लिखेंगे तो लिख के भी आइएगा. I'll meet you tomorrow. Thanks a lot. Take care. जय हिंद.